Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Rupam Mukherjee sir, teacher by profession, poet, author, motivational speaker, Joe Stock speaker, multiple awardee, public figure, and very most important, leaf artist and world record holder. Presently working in Sports School Bangalore, Rupamji is world widely recognized for his innovative teaching method and his unique artistry as a leaf artist. Rupamji is a true icon, making a remarkable impact in both education and arts. Very warm welcome रूपम जी, आपका योगीराम Thank पॉडकास्ट में you. बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. It's like मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपसे मुलाकात हुई. It's a pleasure of mine and my team. Sir, moving to the first question, starting the podcast, please sir, share your journey inside how your diverse professional, you are, and yes, you are catering many things. You are helping, guiding people, and yes, you are a great, well, worldwide artist. So, like every particular person has a journey, right? So we normally think about journeys. Some journeys becomes an inspiring journey. Some journey becomes a success story in everyone's life, right? So I was teaching in a profession for 2014. So like journey was going on, same as a teacher, teaching in a school, teaching the students, using our skills because nowadays earlier days the system is over. जब हम लोग ने पढ़ाई किया था वो जमाना गया. Nowadays this ब्लैक बोर्ड का कहानी खत्म हो गया. ब्लैक बोर्ड हैज जस्ट बिकम एज एन एग्जांपल, राइट? तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड हैज बिकम जस्ट एन एग्जांपल. तो अभी सीन क्या है कि अभी नाउ इट हैज बिकम इनटू व्हाइट बोर्ड. सो व्हाइट बोर्ड हैज आल्सो चेंज इनटू डिफरेंट इनोवेटिव वेज. 21st सेंचुरी स्किल्स को आपको यूज करना है, सीसीडी स्किल्स. तो उस स्किल्स को टेकअप करना, लाइक इट वाज गोइंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स आर देयर एंड वी हैव टू बी अपडेटेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू बी अपडेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जर्नीज तो होते रहते हैं सबके. तो मेरे जर्नी स्टार्ट हुआ था 2014, बट वो नॉर्मल जर्नी था. लेकिन वो कोविड का एक प्लस पॉइंट भी था, एक नेगेटिव पॉइंट भी था. सी एवरीथिंग हैज एन एडवांटेज एज अ डिसएडवांटेज. सब में एक प्रोज होते हैं, एक कॉन्स होते हैं सब में. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए इट वाज लाइक अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट मैं ये बोलूंगा कि कोविड हैज टॉट अस अ लेसन इन एवरीवन्स लाइफ. तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही था कोविड का सीन. 2020 में मेरी जर्नी शुरू हुई. ऐसा जर्नी था, इट वाज एन इंस्पायरिंग जर्नी, जिस वजह से आई एम इनवाइटेड इन जो स्टॉक्स आल्सो इन डिफरेंट पॉडकास्ट एज एन अवार्डी, डिफरेंट वेज. वो चलते ही रहा, अभी भी चल रहा है. Sir, moving to my personal favorite question, what inspired you to become a teacher and how has this career fulfilled you? Teaching as a career is basically like from it was not by default. It was my self interest only to teach the students because like sometimes we have seen that whenever like parents used to send us to school, they have a mindset up. My son is going to school, I have to be like he or she has to be a doctor or an engineer. ये मतलब बाय बर्थ कंसेप्ट हो चुका है. नो वन कम्स इनटू टीचर. कोई टीचर बनेगा ही नहीं. फिर अगर सब इंजीनियर डॉक्टर्स बन गए तो किसी को तो टीचर बनना पड़ेगा. So I decided that yeah, means my father used to write down poetries and everything. So I decided that I will teach the students because the most important thing is that once you teach the students and that students used to grow up in the life, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, वो आपको कभी भी देखेंगे. वो जब आपको किसी जगह मिलता है ना, वो जो आपको रिस्पेक्ट देता है कि सर हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग. तो वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है टीचर के, गुरु का लाइफ में कि आज वो बच्चे को मैंने पढ़ाया. वो बहुत खुशी की बात होता है, बहुत गर्व की बात होता है, विच आई फील पर्सनली. तो हम भी कभी कभार अगर टीचर्स को अपने तरफ से कर देते हैं कि कहीं पे मिले, कहीं मुलाकात हुई, ट्रेन में हो, बस में हो, या रास्ते में हो, या किसी जगह में पार्क में मुलाकात हुई, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तो हम लोग देख के वो जो रेस्पेक्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो वो इनर फीलिंग्स होता है कि एक जमाना ऐसे भी होगा कि like when I will also from this particular situation, when I will become also old, my students will also tell me like that. तो ये थोड़ा एक सीन होता है. तो मैंने डिसाइड किया that teaching is the noble profession. इससे बेटर कोई प्रोफेशन है नहीं, क्योंकि अगर आप किसी चीज को सिखा रहे हो, इसका मतलब है आप उस चीज में मास्टर हो, तब जाके आप उसको सिखा पा रहे हो. Great, sir. Sir, moving to the next question, how do you balance your role as a teacher, poet, author, and motivational speaker? Actually the thing is that sir, I am a commerce teacher. So commerce teacher means entrepreneurship, business studies, accountancy. ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, these three subjects are the core subjects in commerce, right? चाहे आप सीए कर लीजिए, चाहे आप सीएस कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बीबीए, एमबीए, कुछ भी, ये आपका ग्रोथ स्टेज है, राइट? नाउ विद इन दिस पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम मैनेजमेंट. आपको टाइम निकालना है. हाउ विल यू डू दैट इज योर चॉइस. टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली फॉर यू. तो कैसे आपको टाइम निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्कूल से वापस आए, ठीक है, स्कूल से आने के बाद आपने रेस्ट लिया,
आप रील्स देख रहे हैं, आपने 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद किया, आपने सो गए, तो आपका वो दिन का आउटपुट कुछ नहीं हुआ। आप सुबह Correct. उठ के फ्रेश होके स्कूल गए, वापस बच्चे को पढ़ाए, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका नथिंग एल्स वाज देयर, कुछ भी नहीं हुआ आपका। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, चाहे वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इन्विटेशन हो या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो नॉर्मली टू टेल दैट टू एवरीवन, इवन इन माय स्कूल आल्सो, इवन टू माय कलीग्स, द टाइम मैनेजमेंट। ये बात सिर्फ आपका नहीं है, ये बात इन जनरल सबका ही है। इवन माय कलीग्स आल्सो यूज्ड टू आस्क मी कि सर, अब निकालते कैसे है टाइम स्कूल से आके? तो मैंने बोला कि मैं जब स्कूल में रहता हूँ, तो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स। स्कूल से जब मुझे वापस आना पड़ता है अपने रूम में, तो आई यूज्ड टू थिंक दैट व्हाट आई हैव टू डू द नेक्स्ट, बिकॉज आइडल मैंने द डेविल्स वर्कशॉप में आइडल बैठा रहूंगा ना, तो दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आएंगे। तो मुझे वो टाइम को यूज करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट है, बैलेंस करना पड़ता है। Great, great, great. Sir, moving to the next question, please share your experience as a Josh Talk speaker and how it's impacted your career. Joe Stock speaker, like I have a successful, inspiring journey. It was not a successful; it was like quite tough, which I will share you in this particular podcast later on. So basically, like when I was teaching in the school, when I was in Raniganj, in a very well reputed CBSE school, so जहाँ पे वो शूटिंग हुआ था ना, अक्षय कुमार जी का, मिशन रानीगंज, बस थोड़ा आसपास का जगह पे, इट वाज लाइक अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो सडनली आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद वन पर्टिकुलर पर्सन एंड आई ड्राफ्टेड बाय मेल as well as in a connection via social media that regarding this particular journey. तो उन लोग ने मेरे जर्नी को देखा, they realized that yes, it can be a particular journey inspired as a Joe Stock speaker, or you can get an invitation also. So they gave me a call, and it was, I remember it was on like a Saturday. It was about 12 o'clock, and my school was about to close at 2:30, because Saturday means almost the students will leave by 12 o'clock, and 1 hour extension as per the CBSE norms. Right. तो 1 घंटा आपका स्टे बैक रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि they gave me a call at 12:30 or at least like 2:30 sometimes, and I said okay fine कि सर आपको कल ही आना है, and tomorrow was Sunday. So anyhow I planned myself, and it was in Kolkata, so it was okay for me to journey. I went over there, I had my journey, I had spoken everything whatever I had faced in my life, my career, my everything, even my going things also. And after like 3-4 months, like that result came out suddenly. It was in my personal WhatsApp only, the sir, this is the like total video which we have edited and everything, whatever the total everything that we have done. So please you can show it in the social media. Already it is in the Joe Stocks website also, and even as a viewers also. उसमें सबसे important चीज क्या था? When I went on the very next day, जब मैं स्कूल पहुंचा, I was having 4-5 classes. I remember it was Monday. मंडे मेरे क्लासेस थोड़ा कम रहते हैं, तो क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा क्या होता है ना कि स्कूल में थोड़ा कम करके शुरुआत करके लास्ट में थोड़ा बढ़ा देते हैं क्लासेस। तो सो आई यूज्ड टू हैंडल द ग्रेड 12 स्टूडेंट्स आल्सो। सो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे क्लासेस बहुत कम थे। मैं जो भी क्लासेस में जा रहा था, स्पेशली फर्स्ट क्लास, तो स्टूडेंट्स को ना देखने से टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चे का माइंड में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट क्लास में मैं गया, बच्चे लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो तो बच्चे टीचर्स को मानते तक नहीं है। सर आए पढ़ा रहे, ठीक है, वो जा रहे कोई दिक्कत नहीं। बट वो बच्चे उस दिन बड़ा अच्छे से सुने मेरी बात। मैंने बोला पता नहीं, मे बी एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर, इसी वजह से शायद बच्चे में कुछ सुधार आया है, कुछ चेंजेस आया है कि नहीं, टीचर का बात सुनना है, या उनके पेरेंट्स ने बोला है कि नहीं बेटा पढ़ लो, तुमको अभी पढ़ाई करना है, एग्जाम्स आ रहे हैं। बट उन लोग का ये सीन नहीं था, उन लोग का ना कुछ अलग सीन था। मतलब दे वर लुकिंग एट मी, लाइक स्टेयरिंग एट मी इन अ वेरी नाइस वे। वो क्लास हुआ, फिर रेस्ट हुआ। एक टीचर से मेरा मुलाकात हुई, उन्होंने बोला रूपम वेरी नाइस, कीप इट अप। तो उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया कि कीप इट अप फॉर व्हाट पर्पस। आपको तो कुछ एक्सप्रेशन चाहिए ना कि आप कीप इट अप बोल रहे हैं तो किस किस पर्पस के लिए बोल रहे हैं। Right. वो चीज नहीं हुआ। अब वो चीज जब नहीं हुआ तो ठीक है, मैं दूसरा क्लास में गया। अब जब मैं दूसरा क्लास में गया तो आई रियलाइज कि जब मैं क्लास में एंटर किया, इट वाज ग्रेड 9, आई रिमेंबर, इट वाज माय इकोनॉमिक्स क्लास। तो व्हेन आई एंटर्ड टू द क्लास, all the students stand up as normally they used to greet the teachers, good morning sir. Now good morning के साथ साथ उन लोग ने एक वर्ड भी ऐड कर दिया, that was congratulations sir. मैंने बोला congratulations क्यों? I didn't got my promotion, that I have become a coordinator or something like that. तो अचानक क्या हुआ? Even it does not declare that when you will be promoted to grade 10, I will become your again economics teacher for teaching you economics in grade 10. बोला no sir, this congratulations for you is basically we have seen your video. मैंने बोला यार मेरा वीडियो कहाँ वायरल हो गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरा वीडियो वायरल हो गया? सर वी हैव सीन यू इन जो स्टॉक्स। फिर मुझे याद है, अरे कल ही तो मैंने देखा था कि मेरा एक वीडियो आया था। तो सर यू आर अमेजिंग। तो ये जो एप्रिशिएशन होता है ना, जब आप किसी बच्चे से आपको ये बात सुनने को मिलता है कि सर यू डिड अ वंडरफुल जॉब। हम लोग को पता नहीं था यू हैड दिस इंस्पायरिंग जर्नी फॉर यू, आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया। तो आस्ते आस्ते क्या हुआ ना, सारे टीचर, सारे कलीग्स, each and everyone they saw my video, comments आए,
मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, उन लोग ने भी वो चीज देखा, बिकॉज जो स्टॉक्स समथिंग लाइक दैट कि ऑटोमेटिक आपका शेयर होते रहता है, वायरल हो जाता है। तो कमेंट्स पे कमेंट्स आए, सर वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर बिकमिंग योर स्टूडेंट, सर वी रियली वांट टू मीट यू। ऐसे मेरे कितने सारे पुराने स्टूडेंट्स रीयूनियन करके मुझसे सेपरेटली मुलाकात किए, तो आई मेट विद देम, जर्नी बढ़ते रहा। टीचर्स में कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी फंक्शन पे जाता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ या हम लोग फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, तो दैट टाइम, रूपम तुम्हारा वीडियो देखा यार, बहुत अच्छा था। तो अभी मुझे पूछना पड़ता है कौन सा वीडियो, पॉडकास्ट वीडियो, जो स्टॉक्स वीडियो, टेडेक्स स्पीकर वीडियो, कौन सा वीडियो आपने मुझे देखा, लीफ आर्ट वीडियो, तब जाके पता चलता है कि नहीं जो स्टॉक्स वाले वीडियो का पूछ रहे हैं। तो ये अप्रिशिएशन मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एप्रिशिएशन इज द करेंसी ऑफ सक्सेस। आपको वो डॉलर्स, यूरोस, पाउंड, स्टर्लिंग्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रैंक्स का। अगर आपको अप्रिशिएशन मिला ना, आप जिंदगी में बहुत अच्छे निकलोगे। Great, sir. Sir, moving to the next question, what significance does poetry holds in your life and professional work? Poetry is something basically from a genetic part, right? Sometimes it comes from a genetic, sometimes it comes from your own way. तो पोएट्री में क्या होता है, माय फादर इज अ नोवेलिस्ट, ही यूज्ड टू राइट डाउन, लाइक इन हिंदी उसका की हम लोग बंगाली में उसे कहते हैं कि साहित्यिक, साहित्यिक मींस ही यूज्ड टू राइट डाउन द स्टोरी टाइप सिनेरियोस। तो माय फादर यूज्ड टू राइट डाउन दैट, तो फ्रॉम देयर आई हैव लर्न समथिंग। तो स्कूल लाइफ में क्या होता था कि मैगजीन्स निकलते थे, अभी जैसे तो हर जगह मैगजीन्स निकलते हैं, अभी ऑनलाइन मैगजीन्स हो गया है, तो स्कूल में मैगजीन्स निकलते थे। तो मैं उस टाइम स्कूल मैगजीन लिखना शुरू करता था, उसमें स्मॉल स्मॉल पोएम्स, उसके बाद कुछ शॉर्ट पोम्स होता था, आई टू राइट इट डाउन। तो वो कंसेप्ट मेरा था कि मुझे करना है। उसके बाद मेरा जर्नी में तो था ही कि आई बिकम द फर्स्ट पर्सन टू पेन द स्मॉलेस्ट पोएट्री वाला सीन, तो मेरा था ही। तो फिर चलते रहा, डिफरेंट एंथोलॉजीज बुक्स हैव कम अप, स्टिल आई राइज, जो अमेजन में काफी अवेलेबल है, वहां पे भी मेरे एक दो पोएम्स हैं जो काफी हाईलाइट होती है हर जगह पे। तो चलते रहता है, ट्रैंक्विलिटी से लेके हर सिनेरियोस पे चलते रहता है, तो इट्स गोइंग ऑन। इवन इन माय करियर आल्सो इट्स अफेक्ट समटाइम्स, इन स्कूल आल्सो अगर कुछ मैगजीन हुआ तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, कहीं भी कुछ होता है तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इंटरेक्शन माई सेल्फ, बिकॉज आई वांट टू कीप माई माइंड बिजी, डोंट डिस्ट्रैक्ट हियर एंड देयर। Sir, moving to the next question, a big one. What challenges have you faced in your journey and how did you overcome them? सर एवरीबॉडी लाइफ हैज अ चैलेंजेस, राइट? एवरीवन हैज अ चैलेंज, चैलेंजेस आपके लाइफ में आना जाना करते रहते, इट गोज ऑन, राइट? चैलेंजेस तो सबको ही फेस करना पड़ता है। स्कूल में आप सुबह उठ के जा रहे हैं, क्लास में क्या पढ़ाना है, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग योर वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट चैलेंज। चैलेंज हमेशा रहता है, चैलेंज को अगर आप नेगेटिव वे में ले लेंगे तो यू विल नॉट सक्सीड। चैलेंजेस है, आपको एक्सेप्ट करना है, रिस्क किसमें नहीं है, हर चीज में रिस्क है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस चला तो ठीक है, नहीं चला तो भाई इट इज अ रिस्क, हर चीज में रिस्क है। आप बाइक लेके निकले हैं, रास्ते में आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करेंगे? दैट इज ऑल्सो रिस्क। अब एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी को लेकर सोच रहे क्यों हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों होना था, मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं से काफी होता है, मेरा बातचीत काफी जन से होता है हर दिन लगभग, बिकॉज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे हर आदमी से बात करना पड़ता है, बहुत जन मुझसे सलाह भी लेते हैं। कभी कभार ऐसे होते हैं कि नहीं चलो सडनली। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, कुछ महीने पहले मेरी एक फीमेल से मुलाकात हुई, सडनली हस्बैंड एक्सपायर कर गए, राइट? तो देखिए ऑब्वियसली होता क्या है कि एक नॉर्मल बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हस्बैंड इज अ बिग सपोर्ट फॉर एवरीवन, अब वाइफ के लिए हस्बैंड सबसे बड़ा सपोर्ट है, राइट? तो वो बोले कि रूपम हाउ शुड आई ओवरकम, तो मैंने उनको एक शॉर्ट एग्जांपल दिया। आपने इतना लंबा जर्नी यूज किया, राइट? आप सोचिए बॉर्डर पे जो जवान हमारे जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, राइट? हम लोग कभी कभार न्यूज में देखते हैं 2 महीना 3 महीना एक छोटी सी बच्ची है, वो बच्चा अभी तक अपने फादर को देखा भी नहीं है, उसका बॉडी आ रहा है जम्मू कश्मीर से, कुपवारा से, छिंदवाड़ा से, कहीं कहीं से वो बॉडीज आ रहे हैं, राइट? इवन 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे में हम लोग का एक आईडी अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर, व्हिच वाज कंसीडर्ड अ ब्लैक डे, राइट? इतने मार्टियर्स हुए थे, ऑलमोस्ट 44 सीआरपीएफ जवान्स वर डाइड, राइट? तो उसमें लाइक वन ऑफ देम वाज वेरी नोन टू मी, तो सोरेन वाज आल्सो देयर इन दैट पर्टिकुलर आईडी अटैक। तो अब सोचिए उसके फैमिली वाले और उसके मेंबर्स उस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? नॉर्मल इंसान का डेथ होता है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वहां तो ऐसा सीन आता है कि यू कांट यूज टू सी योर पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो हस्बैंड हो, बेटा हो, या बच्चे के लिए अपने फादर को भी वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बॉडी छल्ली होके आता है, नथिंग इज देयर इन द बॉडी, कुछ रहता नहीं है। तो वो पेन, वो चैलेंज तो और ज्यादा बड़ा है। आपका एक खरोच आया, खून निकला, वो 10 दिन 15 दिन में आपने ऑइंटमेंट लगाया, आपने मेडिसिन लगाया, ठीक हो गए, वो चैलेंज आपका भर जाएगा। ये चैलेंज आप कैसे भरेंगे? तो चैलेंजेस हमेशा रहता है। तो चैलेंजेस को फोकस करके आपको आगे निकलना है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आपको चैलेंज तो हर जगह पे रहेंगे। चैलेंज आप नौकरी करने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपसे कोई बेटर निकल गया तो भाई कल आप नहीं रह सकते ऑर्गेनाइजेशन पे, नहीं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा।
नहीं तो कुछ कहीं ना कुछ हो जाता है। तो चैलेंजेस रहते हैं, हमेशा हर जगह पे चैलेंजेस आते Then moving to the next question, what role does creativity play in shaping your educational philosophy? हैं। क्रिएटिविटी इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ अ लीडरशिप नाउअडेज इट हैज बिकम। क्रिएटिविटी ऐसा है कि आपको खुद ही क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि हमारे बच्चे जो है वो एडवांस लेवल बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना आपके लिए सबसे बड़ी एक चैलेंज है। आप नॉर्मल किताब लेके जाएंगे, उनके पास भी किताब है, आपके आपके पास भी किताब है, बोथ आर हैविंग द सेम बुक, सेम नोट्स, एवरीथिंग, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप पढ़ाइए, एक कान से सुनेंगे, एक दूसरे कान से निकाल देंगे। क्लियर फंडा है ये। तो आपको उसको अच्छे तरीके से समझाना है। लाइक कोविड कोविड में क्या हुआ था, हम लोग टीचर्स काफी वेबिनार्स अटेंड किए। इवन आई आल्सो डिड अ लॉट ऑफ वेबिनार्स। सेमिनार्स तो वहां चला नहीं, अभी तो सेमिनार चल रहा है, उस टाइम वेबिनार हो गया था। तो बहुत सारे हम लोग को, जैसे गूगल मीट, पहले गूगल मीट, जूम, ये सब का कोई सीन नहीं था। कोविड में आके इन लोग का टीआरपी बहुत बढ़ गया, क्योंकि हर मोमेंट में खाली ऑनलाइन क्लास, तो जूम, नहीं तो गूगल मीट, नहीं तो माई वर्ड डॉक्यूमेंट्स, हर चीज। खास करके देखिए, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आया था। जैसे हम लोग फीडबैक फॉर्म को फिलअप करते हैं, गूगल साइन में जाके गूगल शीट करके आपने सिग्नेचर किया, पहले जमाने में ये सब नहीं था। याहू ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चैलेंजेस यूज किए। बिंगोस, हम लोग पहले बिंगोस का कभी सीन है, मुझे पता नहीं था बिंगोस होता क्या है, बट अल्टीमेटली व्हाट इज अ बिंगो। आप उसको फ्लिप ग्रिड, काहूत, काहूत का तो एज अ डिफरेंट कंसेप्ट, काहूत में इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को सिखाया गया। आप एग्जाम भी ले रहे हो एज अ रैपिड फायर, दैट विल आल्सो बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। 1 मिनट टाइम दिया जाएगा, काहूत आपको जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, आपने यस बोला तो वाव आवाज आएगा, नो ऊ। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे में एक इंटरेस्ट आ जाता है। आप वही नॉर्मल पढ़ाएंगे, 2-4 सवाल देंगे, बच्चे के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। सो टू क्रिएट सम न्यू थिंग्स, अब हमारे क्लास 12 है, उसमें आप क्या क्रिएटिविटी करेंगे, छोटे बच्चे में तब क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग भी उसमें यूज करते हैं कभी कभार, वी ऑल्सो यूज टू यूज इट। हम लोग भी कभी कभार उस चीज को यूज करते हैं, चाहे वो काहूत हो, चाहे वो कुछ हो। नहीं तो हम लोग कुछ मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग, प्राइस, प्रोडक्ट प्लेस, वो सबको पता है। तो पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा सबके पास है, किसी ना किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास मीडियम लेवल में, बट अल्टीमेटली आपको समझना है कि आपका फिगर आउट कैसा है। तो आपने उसको एक यूट्यूब वीडियोस दिखाया, एक शॉर्ट फिल्म दिखा दिया मार्केटिंग के ऊपर, इंटरेस्ट भी आया, समझ भी गया, कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए उसको क्लियर हो जाएगा। आप उसको बुक से पढ़ाइए, वो आज पढ़ेगा, कल एग्जाम देगा, भूल जाएगा, बट एक बार आप किसी चीज को सिखा देंगे ना, वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसको याद रहेगा, अरे मैंने तो ये चीज देखा है। आप चेक, हम लोग प्रोजेक्ट में देते हैं, चेक्स रहते हैं, चेक, कैश वाउचर, पेटी कैश वाउचर। किसी बच्चे से पूछिए चेक क्या होता है, सर मैंने चेक देखा है, आई हैव सीन। लेकिन आप उसको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखाएंगे ना, अपना चेक बुक से चेक फाड़ के कि देखो इसमें क्या होता है, अकाउंट पे ऊपर में 2 क्रॉस मारना पड़ता है, नंबर लिखना पड़ता है, तो बच्चा लाइफ टाइम पता चलेगा कि भाई ये चेक क्या है, अब मुझे समझने का जरूरत नहीं, मैं समझ गया बस, अंटिल डेथ मुझे समझ में आया व्हाट इज अ चेक। तो आपको हाइपोथेटिकल बनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इसी कंटेक्स्ट में एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, प्लीज शेयर सम मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम योर टीचिंग कैरियर। मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माय टीचिंग करियर इज ऑलवेज लाइक 2014 से लेके काफी बच्चे को पढ़ाया, अभी पता भी नहीं कौन बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट आई वाज ट्रैवलिंग इन वन पर्टिकुलर स्टेट फॉर वन ऑफ माय अवार्ड सेरेमनी। तो सडनली आई स्टेप इनटू द फ्लाइट, जैसे एयर होस्टेस होते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करते हैं। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि आई वेंट फॉर एन अवार्ड सेरेमनी, मैं फ्लाइट में चढ़ा, तो मेरे पीछे, बस क्योंकि मैं हमेशा ना लास्ट में सीट लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मिडिल में जो जाते हैं ना, वो बेचारे फंस जाते हैं कि मुझे आगे से निकलना है या पीछे से निकलना है। तो मुझे पता है कि अगर मैं आगे निकलूंगा तो आगे होगा, नहीं तो मैं पीछे। तो हमेशा क्या होता है, मैं पीछे में आराम से बैठ के जाता हूँ, एकदम लास्ट में मैं सीट लेता हूँ, 25-30 ऐसे आसपास मेरा सीट रहता है। तो मेरे पीछे कम से कम 10 जन, अभी भी मुझे याद है, इट वॉज 10 पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड मी, एंड आई वॉज जस्ट स्टेपिंग इन साइड टू द फ्लाइट। तो वही गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो एक लड़की एयर होस्टेस का, शी वॉज वेयरिंग एन इंडिगो यूनिफॉर्म। जब उसने मुझे देखा ना, गुड मॉर्निंग सर बोल के उसने मेरे पैर छुए, तो मैंने बोला सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं नॉर्मली किसी भी फीमेल्स मेरे पैर छू मुझे पसंद नहीं है, चाहे मैं बच्चे क्यों ना हो, मैं बोलता हूँ कि चलो आशीर्वाद हमेशा, पैर छू के कोई योग नहीं करना। तो जब उसका मैंने बैच देखा ना, तो मुझे पता चला, तो मैंने बोला कि, उसे कुछ खुद ही बोला कि सर you taught me English in when I was in a junior class, and after that you taught me like 11-12 accounts and BST। तो मैंने बोला, तो उसने मुझे स्कूल का बारे में बताया, तब मुझे पता चला कि हाँ, तो वो जो मेमोरीज था ना, तो उसने मुझे बोला कि सर मैं आपसे एक फोटो खींचना चाहता हूँ। तो मैं बोला अरे कोई बात नहीं, बच्चे के लिए तो हमेशा फोटो टीचर्स के साथ ही होता है। तो इट वाज अ मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कि चलो आज मैं
वो बच्चे को देखा कि शी इज डूइंग एन वेरी फैंटास्टिक जॉब इज एन एयर होस्टेस, शी इज सक्सेडिंग हर करियर, शी इज डूइंग अ वेरी ब्राइट। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरेबल मोमेंट होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो टीचर को वापस वो रिस्पेक्ट देते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग पे। ये आप बैंक में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, सर्टेन टाइम तक आपको वो, ठीक है सर ये काम कर दीजिए, इतना पैसा मुझे डालना है, डिपॉजिट करना है, बट ये टीचर्स का जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो लाइफ टाइम, आप कितने भी एज हो जाओ। आज भी मुझे हमारे टीचर्स मिलते हैं, मैं जाता हूँ मेरे प्रीवियस स्कूल्स में, तो आज भी चाहे वो मेरे कलीग ही क्यों ना हो गया हो, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, बट स्टिल वो जो रेस्पेक्ट है ना, पैर, वो मुझे बोलते हैं नहीं पैर छूना नहीं है, अरे चल तू तो टीचर बन गया। मतलब नहीं सर, आप अभी भी मेरे लिए टीचर हो, चाहे मैं हजारों कॉलिग कलीग क्यों ना हो, अभी भी ऐसा। कभी हम लोग गए थे, मुझे अभी भी याद है, 2 साल पहले, मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, आपने मुझे बताया ना मेमोरेबल मोमेंट। तो हम लोग कॉपी करेक्शन करने के लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स का कॉपीज बच्चे का करेक्शन करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है। तो मॉक एग्जाम के बाद ना कभी कभार क्या होता है कि 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है, तो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो सीनियर के पास जाता है वो कॉपी, हेड एग्जाम एईसी के पास। तो मेरे सर जो थे, जिन्होंने मुझे खुद पढ़ाया बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज, वो खुद ही एईसी थे। तो वो ना मुझे बहुत डांटे, बहुत डांटे, मतलब इतना डांटे, तो कम से कम ये कैसे हुआ, तू तो इतना सिंसियर है, तेरे हाथ से कैसे ऐसे निकल गया, इसमें 2 नंबर क्यों होगा, इसमें 2 नंबर ऐड होगा, ये वो मुझे बहुत समझा रहे थे। तो बाकी जितने भी टीचर्स है जो वहाँ पे कॉपी चेक कर रहे थे, वो साइलेंट होकर सर का बात सुन रहे थे। फिर लास्ट में बोले कि सर आपका ऐसा डांटना सही नहीं है, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ टीचर। उन्होंने खड़े होकर बोला, मैं उसको थप्पड़ भी लगाऊंगा ना, ये कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज ही इज माई स्टूडेंट। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एची खुद खड़े होकर बोल रहा है कि मैं इसको डांटू तो भी कोई दिक्कत है, क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट है। तो मैंने बोला कि सर ने मुझे 2009 में पढ़ाया था, 2009 सर टॉट मी, आज भी रिलेशन वैसा ही है। तो 2009 सर कैलकुलेट कर लीजिए, इतना साल का रिलेशन है, मैं कभी भी आज तक सर का ऊपर ऊंची आवाज में मैंने बात नहीं किया। मैं चाहे वहां बोल सकता था कि सर आपने मुझे इस तरह से बात क्यों किया, आई एम ऑल्सो टीचर नाउ, बट नहीं, वो सर है मेरे लिए, वो गुरु है। गुरु 10 बार डांटे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरु गुरुज है। आज कुछ भी हम लोग है ना, गुरुज की वजह से ही आज हमारे बच्चे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स ओनली, कोचेस ओनली। तो ये चीज होता है मेमोरेबल मोमेंट्स। Sir, being into a multifaceted career, how you stay motivated and inspired? Inspiration is a journey, first of all. So you cannot stop your journey. Whether many people will come in your life, they will go out, they will try to ruin your life. Doesn't matter. You should not stop yourself. Your concept should be clear, crystal clear. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कंसेप्ट जो है ना, उसको आप क्रिस्टल क्लियर रखो, लाइफ विल बिकम वेरी फैंटास्टिक। आप पहले से सोच नहीं मुझसे तो नहीं होने वाला है, तो फिर आपका आपका नहीं होना पक्का। इफ यू थिंक यू कैन, इट विल बी, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, इट विल नॉट बी देयर। क्योंकि एज अ मल्टीफेसेटेड करियर में क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली इस चीजों को देखते हैं कि आप किसी काम को कर रहे हो, यू आर डूइंग सम पर्टिकुलर वर्क, बट सिचुएशंस इज नॉट इंटरेस्टिंग इन्वॉल्विंग यू टू हेल्प यू आउट। आपको सिचुएशन को क्रिएट करना है, दैट इज योर चॉइस। आपको सिचुएशन को क्रिएट करना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। मल्टी फेसेटेड में चैलेंजेस तो आएंगे ही सर, ठीक है। आप ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बहुत जन को पसंद नहीं आता है, इतने सारे आप काम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझ में वो हुनर है, आई हैव दैट कैलिबर। आप भी करो, कोई किसने तो आपको रोका टोका नहीं है, आप भी करो। आपको लगा आप कर सकते हैं तो आप करो, आपको लगा कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर पाओगे। तो बस यही चीज है। Talking about the noble profession, teaching, educator, what advice would you give to an inspiring teachers and educator? See, normally I have been into like many, like conference कह सकते हैं आप उसे, even like उसे आप कह सकते हैं कि हमारे सीबीएसई करिकुलम उसे कहा जाता है सीबीपी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलेगा, राइट। टीचर्स क्या होते हैं आजकल, मैक्सिमम टीचर्स नेम शेक हो जाते हैं। आप अगर प्रोफेशन को चूज किए हैं, इट शुड नॉट बी अ टाइम पास। क्योंकि अगर आपने इस प्रोफेशन को एज अ करियर चूज किया है, तो इट शुड बी योर लॉन्ग टर्म जर्नी, इट शुड नॉट बी योर शॉर्ट टर्म स्टैंड ऑफ टाइम। कि जैसे 1 लाख रुपया का मैंने लोन लिया, मैं 1 साल में दे दूंगा और चला गया। आप सोचो कि मुझे 50 करोड़ का लोन लेना है, तो मुझे भरपाई कैसे करना पड़ेगा, आई हैव टू बी ए नॉर्मल टीचर फॉर अ लॉन्ग टर्म जर्नी, राइट। मैं कॉमर्स का लैंग्वेज बताता हूँ। नॉर्मल टीचर्स को क्या होता है कि कभी कभार हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चाहे जो भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऐसा कुछ बात बोल दी, उनको बहुत बुरा लग गया। ईगो शुड नॉट बी देयर। किसी भी प्रोफेशन में अगर आपने ईगो रखा है ना, ईगो बड़ा गड़बड़ चीज है लाइफ में। ईगो इज वेरी पैथेटिक। ईगो विल spoil your journey, will spoil your career first, even you spoil your mentality। मैंने भी बहुत सारे स्कूल्स चेंज किए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स आज मेरे साथ कनेक्टेड है। वो चाहे तो मैं उनको निकाल भी सकता था, क्या जरूरत है, उस टाइम वो मेरे प्रिंसिपल थे। अभी मुझे थोड़ी मतलब है, मुझे अभी अपना प्रिंसिपल से मतलब है नहीं, बिकॉज यू डोंट नो हु विल कम एट द नेक्स्ट। आपको पता नहीं आपको किसका जरूरत कब क्या पड़ जाए। मैं काफी बार देखा हूँ कि सैलरीज को लेके इश्यूज होते हैं, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है तो मैं चला जा रहा हूँ, सैलरीज अच्छा नहीं मिल रहा है, आप छोड़ के चले जा रहे हो। आप कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, आप बच्चे को एक ऐसा सिचुएशन में छोड़ के जा रहे हो
जहाँ बच्चे को दूसरे टीचर से लगाव होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपका वहां पे सेटिंग बहुत अच्छा है। यू आर प्लेइंग अ मास्टरपीस रोल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। बच्चे आपको समझ रहे हैं, बच्चे आपको बता रहे हैं सर ये परेशानी है, वो परेशानी है। आप उस जगह बच्चे को छोड़ के जा रहे हो दूसरे स्कूल में, वहां पे भी आपको टाइम लग जाएगा। अगेन यू विल बी कंसिडर्ड योरसेल्फ एज अ फ्रेशर। आप किसी भी जगह पे जाओगे आपको फ्रेशर ही कहलाएगा, चाहे आप 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस कर लो, आपको फ्रेशर ही कहेगा। आपके ऊपर प्रेशर आएंगे। तो आप जहां पे हैं उस जगह पे आप बुलंद होके रहिए, यू बी वेरी परफेक्ट, तो आपके करियर में ग्रोथ होगा। यू शुड नॉट क्लब योरसेल्फ विद लॉट ऑफ वर्क्स, ये नहीं हो रहा, इतना प्रेशर है। अगर आपको प्रेशर दिया जाता है, काम ज्यादा दिया जाता है, इसका मतलब दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। बाकी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मे बी दे आर इनकेपेबल, राइट। अगर आपको काम दिया जा रहा है, अगर आपको बुलेट बुक सिलेक्शन दिया जा रहा है, अगर आपको बोल रहा है कि आपको इतने सारे कॉपीज को चेक करना है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स को आपको चेकआउट करना है, क्रॉस करेक्शन करना है, एरर फ्री है कि नहीं, अगर आपको दिया जा रहा है, इट मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। किसको सुनना नहीं पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है। तो ये सीन चलता है, हर हर जगह पे चलता है, इसमें कोई बड़ा इश्यूज नहीं है वो। मैं सबको यही बोलूंगा कि यू शुड लाइक लीव योर ईगो फार बिहाइंड। ईगोज तो होना बहुत गड़बड़ चीज है। ईगो ईगो इज अ वेरी पैथेटिक सिनेरियो। आपको सबके साथ एक अच्छा सा रोल मेंटेन करना है, आप अच्छे से एक रोल को प्ले कीजिए, उसको बेटर उसको देखिए, फ्यूचर एकदम आराम से जाएगा। यू शुड बी रिलैक्स्ड। वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिलैक्स होना है। इफ यू आर रिलैक्स्ड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा सबको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन को यूटिलाइज किया है, इसको यूज कीजिए कि आप अपना बेस्ट रिसोर्स बच्चे को दें, बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज द नॉर्मल रिसोर्स। तो मैं हर टीचर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड क्लियर योर विजन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक विजन होता है, एक मिशन होता है। तो ये दोनों अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आपका लाइफ में कोई रुकावट नहीं आएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर, जैसा कि आपने बताया, लीप आर्टिस्ट, यू आर वेल नोन, वर्ल्ड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड लीप आर्टिस्ट। सो सर, इसकी जो जर्नी है, ये सर बताइए, कैसे स्टार्ट किया, व्हाट वाज द हर्डल एंड टू बिकम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट, वो सब क्या क्या हर्डल्स आए एंड कैसे कैसे रिकॉग्निशन मिले? सर बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ था, इट्स माय फुल इंस्पायरिंग जर्नी इफ आई टेल यू अबाउट इट। तो दिस हैपेंड इन द कोविड टाइम, राइट। तो कोविड टाइम में क्या हुआ था कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोविड हैज अ प्रोज एंड अ कॉन्स, राइट। तो अब जिसने जिसको जैसा लिया उस उनके वजह से वैसा ही होगा। अब किसी का जिंदगी में सुधार आया तो उनके लिए भाई तो ये अचीवमेंट है। अब किसी का फैमिली में डेथ हुआ का तो उनके लिए नेगेटिविटी है, ऑब्वियसली। तो नॉर्मल सी बात है। अब नॉर्मल क्या होता है कि कोविड में वी ऑल केम डाउन फ्रॉम स्कूल बिकॉज आई वाज इन झारखंड। मैं झारखंड में एक स्कूल में था। तो द नेक्स्ट डे वाज लाइक जनता कर्फ्यू। रिमेम्बर इट वाज 22nd। तो 21 तारीख को हम लोग वापस आ गए। झारखंड तो हमारे बंगाल से बहुत नजदीक है, बिकॉज आई यूज्ड टू बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम बंगाल। आसनसोल। आसनसोल का थोड़ा डिस्टेंस के बाद ही धनबाद झारखंड आ जाता है, तो इट्स अ बॉर्डर एरिया। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 घंटे की जर्नी है बस। तो हम लोग सारे वापस आ गए, वी स्टार्टेड आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसे ही इट वाज सितंबर। माय मदर वाज लाइक वेरी इल, इवन माय फैमिली मेंबर्स लाइक मेरे एल्डर सिस्टर, उनके हस्बैंड, बच्चे आए हुए थे। तो मम्मी ने मुझे भेजा दवाई लाने के लिए। अब देखिए किस्मत क्या होता है, क्या कहते हैं ना कि किस्मत का मार तो सबसे बड़ी मार होता है। मेरा फ्लैट का सामने ही सा दुकान है। मैं नॉर्मल दुकान छोड़ के मैं गया बहुत दूर, ठीक है, मतलब जो मेन बाजार है मैं वहीं पे गया मार्केट, कि भाई मुझे वहां से, मतलब यहाँ मुझे नहीं मिलेगा, वहीं से मुझे दवाई मिलेगा। उसका पीछे एक रीजन भी था, क्योंकि मेरा टैबलेट, मेरी भांजी का जो टैबलेट था, टैब, वो भी मेरे साथ था। मुझे उसको कुछ कवर चाहिए था। मैंने बोला यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो मैं एक दो काम एक साथ कर लेता हूँ। होता है ना, एक तीर में दो निशाना मारना। तो एक निशाना मेरा खत्म हो गया था तो उसी में तो मैं गया वहां पे। सडनली एक ऐसा जगह से मैं निकल रहा था, वहां नॉर्मली एक्सीडेंट्स होते नहीं है, क्योंकि वहां ना आप स्पीड में चला सकते हैं बाइक, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो कुछ भी हो। तो एक छोटा सा रास्ता है वहां, मतलब मैं अभी भी कभी कभार जाता हूँ उस जगह पे स्कूटी लेके या पैदल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे एक्सीडेंट स्पॉट पे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे इस जगह पे। नॉर्मल नेशनल हाईवे पे होता है, चलो ठीक है, स्कूटी का स्पीड रहता है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, चलो बू बा करके गाड़ी निकल रहा है, सब हम भी स्पीड में डालें। लेकिन वो उतना छोटा जगह पे जहाँ एक आदमी जाना जाना कर रहा है, बिजनेस चल रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ कैसे? मेरा स्कूटी ऐसे स्किड हुआ था सर। स्कूटी में क्या होता है, जब भी नॉर्मल एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो ब्रेन काम नहीं करते, अब ब्रेन डजंट वर्क। और जब ब्रेन काम नहीं करता है तो एक्सीलेटर हमेशा पिकअप पॉइंट पे रहता है। ये मैंने डॉक्टर से भी सुना है, मैं इसमें स्टडी भी किया था आफ्टर माई एक्सीडेंट, कि ये होता है। इसीलिए एक्सीडेंट्स में क्या होता है ना, ज्यादा फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इसी रीजन से। क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड को छोड़ देते हैं, राइट हैंड हम लोग छोड़ नहीं पाते। राइट हैंड का मजबूती ऐसा है ना, आप किसी भी जगह पे देखो, आप राइट हैंड को हमेशा पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आप जगन्नाथ पुरी धाम में अगर आप रथ को भी टान रहे हो ना, सबसे पहले आपका राइट हैंड ही कस के पकड़ेगा, लेफ्ट हैंड नहीं आता है। तो राइट हैंड का फोर्स और विल पावर सबसे ज्यादा है हम लोग के लिए। तो मेरा राइट हैंड का पिकअप पॉइंट बहुत ज्यादा था और स्कूटी एकदम स्किड करके गिरा। माय हेलमेट वाज देयर, वो सेव माय लाइफ, नहीं तो फैटल एक्सीडेंट कंफर्म था वहां पे।
क्योंकि पत्थर तो बहुत ज्यादा थे वहां पे। गिरा गिरा मेरा स्कूटी, मेरे वाइफ का स्कूटी था, वो गिरा मेरा एकदम पैर का ऊपर। और जहां पैर का ऊपर है, हम लोग का पैर पे जो एंकल होता है ना, वहां पे दो बॉल सॉकेट पॉइंट रहते हैं, तो वो ईक होता है ना शुगर केन, जैसे आप शुगर केन को काटते हो ना, वैसा मेरा पैर का वो पोर्शन टूट गया था। ठीक है, इट वाज लाइक टिबिया एंड फिबुला वाज डिवाइडेड। जब वहां मुझे रेस्क्यू किया गया, जब उठाया मुझे वहां पे, मेरे स्कूटी को उठाया, तो स्कूटी का तो ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा डैमेज हो गया था, कुछ नॉर्मल, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, नॉर्मल डैमेज हुआ था, बट सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था मेरा पैर। लेफ्ट लेग वाज ओके, मैं बाएं पैर में खड़े हो सकती हूँ। देखिए उस टाइम क्या होता है कि 2 मिनट के लिए आप उठ के खड़े हो नहीं हो सकते हो, आपको उस टाइम आपका काम ही नहीं करेगा। जब मैं राइट पैर को रखने का कोशिश कर रहा था, तो इट वाज रोटेटिंग 360 डिग्री, 360 डिग्री मेरा पैर घूम रहा है, नीचे वाला एंकल जो है वो ऐसे करके पूरा घूम रहा है 360 डिग्री, जैसे हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, वैसे घूम रहा है पैर। तो मैं समझ गया कि केस इज जॉन्डिस, कुछ नहीं हो सकता है। तुरंत पेरेंट्स के पास कॉल किया, उन लोग आए, एक्सरे हुआ, एक्सरे में रिपोर्ट आया कि मेजर मतलब ब्रोकन है, मैक्सिमम तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और कोई चांसेस नहीं। तो रात में ही हम लोग, मेरे घर का सामने ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे नर्सिंग होम है, हम लोग वहाँ पे गए थे। द डॉक्टर वॉज वेरी नाइस। वो कहते हैं ना, भगवान, आपने, आपको भगवान दिखा नहीं, लेकिन आपको भगवान का रूप में आपको दर्शन मिल गया। तो ही वॉज सो नाइस, बिकॉज माई वाइफ्स लाइक एल्डर ब्रदर इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर इन कोलकाता एज एन ऑर्थोपेडिक। तो वो बोले कि रूपम को इधर आने का जरूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर को मैं बता देता हूँ, ही इज अ वेरी नाइस डॉक्टर इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली तुम्हारे एरिया में, एंड ही इज रियली वेरी नाइस डॉक्टर। तो वो खुद फोन किए थे कि अगर जरूरत होगा तो मैं आता हूँ, तो वो बोले कि नहीं नहीं, इट इज ओके, आने का जरूरत नहीं है। तो इट वॉज लाइक गोइंग ऑन, इट वॉज एवरीथिंग वॉज लाइक फैंटास्टिकली गोइंग ऑन। हुआ रात में मुझे वो नॉर्मल एक होता है ना, फर्स्ट एड की तरह किया गया था, नॉर्मल प्लास्टर। अगले दिन, दैट वाज 21 सितंबर, मेरा 3.5 घंटा का ऑपरेशन हुआ था। इट वाज लाइक 5:30 to 8:30। आई केम आउट एट 8:45 एवरीथिंग। वो भी लोअर से लेके पूरा का पूरा, इवन आई हैव सीन माय ऑपरेशन, दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज, कि मैंने अपना ऑपरेशन देखा कि कैसे रॉड्स आ रहे हैं। मुझे दिखाया गया था कि देखो ये रॉड है, वो रॉड। मैं डरा नहीं, कि मुझे पता है कि अब जो होना है भाई, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मदर फादर है और मेरी वाइफ है, अगर मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, राइट। ऑलमोस्ट दे आर एजेड। तो 2 टाइटेनियम रॉड्स आर देयर, राइट, 2 प्लेट्स, 6 नेल्स, 8 स्क्रूज, 2 बोल्ट्स अभी भी पैर में लगा हुआ है। इट वॉज 36 स्टिचेस एंड 26 स्टेपलर्स। ठीक है, तो पूरा का पैर का तो एकदम गया। तो चलते रहा, इवन जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, आई केम आउट, इट वाज ओके। रात में थोड़ा हल्का ना पेन शुरू होता है, जब आपका एनेस्थेसिया खत्म होने आता है ना, आपको फिर पता होता है कि भाई पेन क्या चीज है। तो इट वाज पेन लाइक, आपके जो बाल है ना, आपको मन करेगा कि आई विल लाइक टेक इट आउट। ठीक है, कुछ भी नहीं रहे तो मतलब आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, इतना दर्द होता है। तो सडनली मेरी वाइफ ने नोटिस किया कि जहाँ पे मेरे बैंडेज हुए थे, मतलब फ्रॉम दिस होल पार्ट, मतलब नी से लेके पूरा एंकल तक, वहां पे मेरा पूरा बैंडेज किया हुआ था स्टिचेस के साथ, ब्लड निकलना शुरू हुआ रात में। इट वाज शोकिंग। तो डॉक्टर्स तो रात में फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो देयर वाज अ वेरी यंग डॉक्टर हु वाज आल्सो वेरी नोन, एंड समहाउ वी गॉट कनेक्टेड दैट आई एम आल्सो एन एनिमल लवर, ही इज आल्सो एन एनिमल लवर, राइट। उनके घर पे एनिमल्स है, मेरे घर पे एनिमल्स नहीं है। आई डोंट हैव अ पेट इन माय होम, but I'm very much interested to keep a pet. But I normally used to go for feeding and everything. Even I used to do some social works also for the animals, right? एनिमल क्रुएल्टी से लेके बहुत सारे काम को लेके मैं कभी कभार कुछ काम करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है। और नॉर्मली मेरे स्कूल्स में डॉग्स हैं, पपीज हैं, तो मैं हर दिन उनको, जब तक मैं 1-2 मिनट, 4-5-10 मिनट तक मैं प्यार नहीं करता, तब तक मैं क्लासेस पे जाता भी नहीं, राइट। तो कभी कभार मैं खिलाता हूँ, तो चलते रहते हैं। तो उनको कॉल किया गया, ही सेड कि ओके भैया मैं आ रहा हूँ। आया, पूरा बैंडेज को ओपन किया, एंड आई हैव सीन द ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द स्टिचेस। तो मैंने बोला आप करना क्या है? तो बोला कुछ नहीं करना, इट इज ओके, ये ब्लड निकलना जरूरी है, दिस इज द बैड ब्लड, तो लेट इट कम आउट। तो बहुत कम ही ब्लड निकला है, बहुत जन का तो बहुत ज्यादा निकलता है, तुम्हारा आपका तो बस इतना 1 बॉल ही ब्लड निकला है। समझ मेरा 1 ब्लड, आप समझ रहे हो, वैसे ही मेरा ब्लड नहीं है। इतना सारा एक्सीडेंट, इतना ब्लड आप लोगों ने ले लिया है ऊपर से ऑपरेशन पे, अब आप बोल रहे हो इतना सारा काम है। तो बोला कि नहीं भैया कुछ नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल सिनेरियो। मैंने बोला तब ठीक है, चलो अगर आप बता रहे हो तो इट्स नॉर्मल, तो इट्स ओके। उन्होंने ये चीज किया, उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, अगर आप पेन बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं आपको स्टेपलर देता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप दोबारा इंजेक्शन लगा दो। वो बोला नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता, स्टेपलर्स के लिए मैं आपको इंजेक्शन नहीं दे सकता। तो मैं बोला करोगे कैसे इंजेक्शन, नहीं दोगे तो जहां पे आपका स्टिचेस हुआ है, अगर ये पर्टिकुलर जगह पे स्टिचेस है, उस जगह पे बैठ के आपको स्टेपलर्स देना है। तो लगातार 26 स्टेपलर्स उन्होंने लगाते गए, 26 स्टेपलर्स, और बड़े बड़े स्टेपलर्स। थोड़ा सा भी स्टेपलर अगर हाथ में घुस जाता तो दर्द होता है, वहां सोचिए कि कितना दर्द हुआ होगा। 26 स्टेपलर्स, राइट। तो 26 स्टेपलर्स लगा, मैं वापस आया, चल रहा है मेरा जर्नी, ड्रेसिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, फिर डिस्कस करते करते मैंने बोला कि यार बहुत हुआ,
दुर्गा पूजा गया, क्योंकि मेरे जो फ्लैट है ना, मेरा फ्लैट का जस्ट सामने विद इन लाइक 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 20 मीटर्स के आसपास, मान के चलिए 100 मीटर होगा मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 मीटर्स के आसपास एक दुर्गा पूजा होता है। ग्रेट ग्रेट। तो मेरे जैसे, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इधर विंडो है, मैं ऐसे देख रहा था पीछे मुड़ के, कि ऐसे मैं घुमा के देखा कि सब जा रहे हैं दुर्गा पूजा में नए ड्रेस, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर, मेरी वाइफ, ये तीनों ने बहुत सैक्रिफाइस किया था उस टाइम, वेरी सैक्रिफाइस, स्पेशली माय वाइफ बहुत सैक्रिफाइस किया था उस टाइम। उसको स्कूल भी जाना था, मुझे भी देखना था, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज गोइंग। तो ये नॉर्मल चल रहा था। दुर्गा पूजा गया, दिवाली गई, तो मैंने बोला यार अब तो नहीं, अब तो मुझे मतलब आई नीड टू लाइक ग्रो अप, बहुत हुआ। बिकॉज आई वॉज इन माई बेड रिडन जर्नी, 7 महीना हो गया था, आई वॉज इन माई बेड रिडन जर्नी, मैं ना नीचे उतर पा रहा था, कुछ कर पा रहा था। तो मैंने कविता लिखना शुरू किया। मैं बोला कि क्योंकि अगर आप बार बार उस चीज को देखोगे ना, आप पजल्ड हो जाओगे, मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं, मैं चल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आपको स्ट्रेचर, राइट, क्रेच हाथ में बैठा के लेना पड़ेगा आपको। मतलब ये 3 चीज आपको नॉर्मल है कि अभी फिगर आउट होना है कि अभी कुछ भी ठीक होगा, तो ये चीज। उसके बाद है स्टेप्स करना, फिजियोथेरेपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी। तो मैंने बोला ये तो लंबा प्रोसेस है भाई, मुझे इसको थोड़ा रिड्यूस करना है, क्योंकि मैं अगर उधर ध्यान दे दूंगा ना, तो मेरे फैमिली को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज बाई सीइंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम सोचिए मेरा एज था, इट वाज लाइक 27 ईयर्स का एज में अगर किसी को भी अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है, तो उस पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतता है मुझे पता है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू सम आर्मी फैमिलीज। जब उनके फैमिलीज में किसी का भी अगर डेथ होता है, किसी भी सोल्जर्स का डेथ होता है, बेटा का डेथ होता है, तो उनके फैमिलीज में क्या होता है मुझे पता है, आई हैव बीन इनटू दिस पर्टिकुलर सिनेरियोस। मैंने बोला कि मुझे ये चीज नहीं करना है अपने लाइफ में, तो मैंने कविता लिखना शुरू किया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, रूपम, ही वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, नाउ ही इज इन मेलबोर्न, तो ही इज स्टेइंग इन मेलबोर्न, ही इज अ प्रोफेसर ओवर देयर मेलबोर्न यूनिवर्सिटी। तो उसने बोला, रूपम, इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो, तो तू अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह पे सिचुएट कर, फोकस करके मुझे करना क्या है। तो वो फोकस करने का सिचुएशन मैंने देखा कि जैसे नाउ सोशल मीडिया से बहुत अभी निकलते रहते हैं बुक अवार्ड्स, तो मैंने कनेक्ट किया एकदम से। तो उन्होंने बोला कि सर यू सेंड मी योर पोएट्री। तो मैंने पोएट्री जो लिखा था वो 3 लाइन्स था, इट वाज ऑफ 6 वर्ड्स, ठीक है, 6 शब्दों का कविता, 3 लाइन पे। ड्यू ब्लूम्ड, लीव्स विदर्ड, विंटर केम, राइट, क्योंकि विंटर आने वाला है। और हमारा बंगाल में विंटर क्या होता है ना, कि जैसे बैंगलोर में विंटर क्या है पता भी नहीं चलता, मेरा विंटर में फैन चल रहा था। और मेरे उधर जब मैं दिसंबर में गया था, आई टू टेक अ ब्लैंकेट, 1-2 ब्लैंकेट तो काफी है भाई, 3 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चल रहा था। तो विंटर का जो मौसम है ना, तो मैं उसको फील करके मैंने वो पोएट्री बनाया। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे बहुत से नोटिफिकेशंस आते हैं, मतलब रिकॉग्निशन के लिए, ऐसा कभी नहीं आया मेरे पास। वो भी आपने बनाया फ्लोरा एंड फौना के ऊपर, मतलब एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ दोनों को मिला, बिकॉज नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स ओनली यूज टू फेस, दे ऑल्सो यूज टू फेस। अगर पत्ते के ऊपर आप पानी डाल रहे हो ना, तो उसको भी ठंडा लगता है, राइट राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि we used to see all these concepts and we used to understand। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, it's okay fine। तो we used to be get connected and normalcy is the thing is that चलता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आई हैव सेंड देम ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर 1 मंथ आई रिमेम्बर, इट वाज ऑन नवंबर 21st or 20, हाँ 21st November it was, they gave me the recognition that for being the smallest poetry। तो once it has came, it circulated very rapidly, सब जगह पे, पेज पे, फैन पेज पे, ये फॉलोअर्स वो फॉलोअर्स से कनेक्ट होते रहा। माई वाइफ वेंट टू द स्कूल दैट टाइम, कुछ काम के लिए गया था कोविड के टाइम पे, वापस आया तो किसी ने कुछ बताया नहीं। नेक्स्ट डे जब वो आसनसोल हम लोग का जो मेन पेज है वहां पे जब वो मुझे हाईलाइट किया गया था, तो एवरीवन सीन एंड इट वाज लाइक क्वाइट वेरी गुड रीच, कम से कम वही 3-4 हजार तक रीच हुआ था उसमें। कमेंट्स भी आए थे काफी सारे, मेरे सारे पुराने फ्रेंड्स है, टीचर्स है, कलीग्स है, सबने कमेंट किया था उसमें। सो बेसिकली लाइक नॉर्मली जब वो चीजें हुआ, तो कमेंट करना शुरू किया मेरे वाइफ का, मतलब तब तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तब से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, अभी भी चलता है वो। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए थे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबने कमेंट किया। नॉर्मली क्या हो रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन सबका आ रहा था। तो मैम ने फोन करके मेरी वाइफ को बताया कि यार तुमने तो बताया नहीं, बिकॉज मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, आई एम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो सबका कमेंट्स आते रहे। तो मेरे वाइफ ने बोला कि जब तक एक सर्टेन लेवल तक आता है ना, तो हम लोग बताना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आप अगर डे 1 से अगर आपको लगने लगे कि भाई मैं सेलिब्रिटी बन गया, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। यू हैव टू बी अ वेरी सिंपल लाइफ। सेलिब्रिटी बनना तो बहुत मुश्किल की बात है, आप पहले जर्नी तो शुरू करो। Right. तो किसी ने मुझे कॉल भी किया कि रूपम, यू डिडंट से यू आर आवर स्टूडेंट ओनली। आई सेड मैम, सी द थिंग इज दैट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेट मी अचीव माई गोल्स, इट इज जस्ट अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो इन माई लाइफ। तो रिपोर्टर्स आए, 2-2 रिपोर्टर्स आए थे मेरे घर पे। 3-4 दिन के बाद ही कॉल आया था कि रिपोर्टर्स आएंगे आपके घर पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जब उन लोगों ने मुझे देखा व्हील चेयर पे ना, दे वर वेरी शॉक्ड, बिकॉज आई वॉज इन अ व्हील चेयर, आई वॉज कमिंग इन अ व्हील चेयर, एंड उन लोग को बड़ा अजीब लगा। तो आफ्टर दैट
दे टुक माय इंटरव्यू, दे वर वेरी हैप्पी फॉर गिविंग माय इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। वो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था इधर उधर। अब जब मैं स्टिच को काटने के लिए मैं डॉक्टर्स के पास गया था नर्सिंग होम में वापस, तो मुझे दो व्यक्ति वहां पे मिले जो मुझे देख के दौड़ के आए। तो मुझे लगा कि भाई शायद दे आर ट्राइंग टू हेल्प मी आउट, बट दे वर नॉट हेल्पिंग मी आउट, दे वर ट्राइंग टू टेक अ पिक्चर विद मी, सेल्फी विद मी। तो मैंने बोला कि रिगार्डिंग भैया आपको हम लोग ने देखा टीवी पे। मतलब भाई मैं टीवी पे कब आया? नहीं आपने वो कविता लिखा था ना। मतलब अच्छा अच्छा, तो एक ऑटोग्राफ मिल सकता है आपका? मतलब नहीं मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, अभी ऑटोग्राफ देने का सिचुएशन पे मैं आया नहीं हूँ, जब मैं दूंगा मैं पर्टिकुलरली आपसे मिलूंगा मैं। तो वो दोनों मेरे सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, मुझे मेरे हर पोस्ट में वो राइट रिएक्ट देते रहते हैं, चलते रहता है बातों के साथ। तो जर्नी चलते रहा। अब आता हूँ मैं लीफ आर्ट पे। तो अचानक मैं एक दिन पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे एक पत्ता चाहिए, किसी भी पत्ता आप लेके आओ, स्पेशली पीपल का पत्ता ही आप लेके आओ। तो पापा को पीपल का पत्ता मिला नहीं, पापा ने एक नॉर्मल सा पत्ता लेके आया था। मैंने बनाया तो था उसमें क्राफ्टिंग करके, बट 26 जनवरी बना नहीं। मैंने रिपोर्टर्स को भेजा था तो उन लोगों ने बोला कि नहीं रूपम ये चलेगा नहीं अभी स्पेशली, तो इसमें तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो करते करते मैंने उस टाइम कोविड के टाइम में, दैट वाज लाइक सोनू सर वाज डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, स्टिल आल्सो ही इज डूइंग, सोनू सूद। Right, right. तो ही इज लाइक अ ग्रेट आइकॉन इन माय लाइफ, मेरे लिए भगवान अगर है तो सोनू सर मेरे लिए बहुत बड़े भगवान है, ठीक है। तो उनसे मिलने का तो काफी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आए हैं, लेकिन इत्तेफाक से है कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है मेरा। तो सोनू सर का मैंने सबसे पहले लीफ आर्ट बनाया था, एंड ही इज द ओनली वन पर्सन हु रिकॉग्नाइज मी वेरी वेल। उन्होंने शेयर भी किया था सोशल मीडियाज में। तो उनका जब शेयर हुआ था ना, तो मुझे पता चला कि अब परफेक्ट हो रहा है, परफेक्शन इज कमिंग। ऐसे करते करते शुरुआत होते रहा। आई गेट इन कनेक्टेड विद मेनी पीपल, मेनी अवार्ड्स हैव कम ड्यू टू माय दिस पोएट्री आल्सो फ्रॉम डिफरेंट, आई गॉट कनेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिकॉग्निशंस आए इधर उधर से, काम चलते रहा। तुलसी कुमार से लेके CR7 को ट्वीट करना, लियोनेल मेसी को ट्वीट करना, सबको मैंने ट्वीट किया था। मो सलाह से लेके, बिकॉज मो सलाह इज माय फेवरेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर मो सलाह, मोहम्मद सलाह, इजिप्शियन किंग है वो। तो उसके बाद सबको मैं नॉर्मली ट्वीट किया। तो चलते रहा, रिकॉग्निशंस आए। तो ऊपर से जॉन सर को भी मैंने एक बार भेजा था, वहां से भी एक रिकॉग्निशन आया जॉन सर से, ये लाइक इट वाज वेरी फैंटास्टिक। तो वेस्ट बंगाल में मैं काफी सारे सिंगर्स से मैं मिला, रिसेंटली चल भी रहे। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट इज अ वेरी रिनाउंड बॉलीवुड सिंगर जिनके साथ मेरा बहुत जल्दी मुलाकात होने का बात चल रहा है। इवन आई मेड अ लीफ आर्ट आल्सो फॉर हिम। तो ये चलते रहा, कनेक्शंस बढ़ते रहे। फिर आई गॉट कनेक्टेड विथ नेदरलैंड, वन पर्टिकुलर लेडी, शी हैज गिवन मी एन ऑर्डर ऑफ 100 लीफ आर्ट्स। Great, 100 great. लीफ आर्ट्स। अब उनका कंसेप्ट क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे अरिजीत सिंह हो गए, विशाल मिश्रा हो गए, कुमार सानू, ऐसे लेके जितने भी सारे सिंगर्स हैं, राइट। तो वहां पे वो चाहते हैं कि I will take out a book, right? And that particular book will be Hollywood pop music around the world. And it will be an anthology book about all the journeys. जैसे आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, he was also taking an interview. वो जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, वैसे she also asking the same questions like that only. अब उसमें वो जर्नीज को लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान के चलिए आपने एक कविता लिखा एंथोलॉजी बुक में, आपसे मांगा जाएगा कि सर आप एक प्रोफेशनल फोटो दे दीजिए। तो आपका प्रोफेशनल फोटो को उन लोग डाल देंगे अपने पेज पे, या जो भी बुक्स निकालेंगे, और उसका नॉर्मल एक निकल जाएगा। बट ये लेडी का कंसेप्ट कुछ अलग है, ये बोला कि नहीं रूपम, आई विल डील विद समथिंग टोटली डिफरेंट बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो मैंने बोला व्हाट यू विल डू, आई विल नॉट टेक द पर्टिकुलर पर्सन पिक्चर, आई विल कलेक्ट द पिक्चर and you have to make a leaf art for that particular all the 100 singers, both male and female, and that leaf art photos only I will paste it as an anthology. तो मैंने बोला इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि हम लोग तो खाली जैसे मेरा मेरा किताब है उसमें मेरा ही फोटो दिया हुआ है, लेकिन मेरा लीफ आर्ट का फोटो नहीं दिया हुआ है कि मैंने अपना लीफ आर्ट का फोटो बनाया। वो चाहते हैं कि अपना लीफ आर्ट का फोटो उसमें पेस्ट हो जाए। तो एटलीस्ट मैंने अभी तक 35 लीफ आर्ट्स बनाए हैं, 65 लीफ आर्ट्स मुझे अभी बनाना है। आई हैव टू सेंड इट टू नेदरलैंड्स, राइट। तो ऐसे भी काम चलता है। मैं नवंबर इधर दिसंबर में मैं आया, मतलब मैं आई वेंट टू वेस्ट बंगाल, it was a vacation. My January में I met with Rahul Banerjee, is also very renowned film actor. तो मैं उनके घर पे जाकर मिला। तो he also like appreciated my work and he said that again I want to meet it with you with some new particular creativity of a leaf art only. ऐसे चलते रहे। फिर ऐसे ही मैंने डिसाइड किया कि भाई बर्थडे का दिन, इट वाज 2022 आई रिमेम्बर। तो मैंने सोचा कि मैंने वाइफ को बोला कि देखो हर साल तो हम लोग रेस्टोरेंट जाते ही रहते हैं, आज इधर नहीं तो कल उधर, हम लोग हमेशा जब भी हम लोग मीटअप्स करते हैं तो हम लोग जाते हैं। तो मैं डिसाइड किया कि नहीं मैं थोड़ा गरीब बच्चे को लाइक खिलाऊंगा। तो इट वाज ओके। तो नॉर्मली तो मेरी वाइफ ने बोला इट्स अ वेरी गुड आइडिया, तुम्हारा ये जो आइडिया है इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। तो मैंने बोला कि मैं ये बर्थडे पे ही करूंगा, राइट। तो समहाउ मैंने कनेक्टेड किया था सोनू सर से।
आई गॉट कनेक्टेड विद सोनू सर, तो उन्होंने बोला कि ये फोटोज लगाओ एक बड़ा सा फ्लेक्स पे, ओके, बैनर पे। एंड वो बैनर से लेके मैंने कम से कम 60 नीडी बच्चेस को मैंने खिलाया था, ओके, अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेंबर्स, एंड आई गॉट अ वंडरफुल लाइक अप्रिसिएशन, लव एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम देम। क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उन लोग उस खाना तक सोच भी नहीं सकता है, मतलब फॉर गेटिंग अ वन डे मील इज ऑल्सो वेरी टफ, राइट। तो मैंने वो किया था, मैंने सोनू सर को भी रखा था, तो मैंने सोनू सर को ट्वीट भी किया था कि सर आपसे प्रभावित होके ही मैंने ये काम किया। तो सोनू सर का 2 दिन के बाद रिप्लाई आया, जन्मदिन मुबारक दोस्त, ये हुई ना बात। तो ये जो कंसेप्ट था ना, ये जो एप्रिसिएशन आपको मिला, ये मुझे लगा कि भाई अगर ये एप्रिसिएशन मुझे मिल सकता है सोनू सर से, तो इट मीन्स दैट आई कैन डू मोर फॉर दैट पर्टिकुलर नीडी पीपल, जिसका भी रिक्वायरमेंट है, जितना तक मैं कर सकता हूँ, I will do that for them. Even trying to get connect with Gautam Gambhir sir also, because he's also doing a very good, fantastic job in Delhi. You might be knowing. वो जो हर दिन जो बच्चे को 1 रुपया का खाना जो खिलाते हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी फैंटास्टिक। इवन आई एम ट्राइंग ऑल्सो, क्योंकि हमारे तो स्पोर्ट्स स्कूल है, कभी ना कभी तो मुलाकात बन ही जाता है। तो ये चलते रहा, तो अभी भी रिकॉग्निशन है, अभी भी ऑर्डर्स आते हैं। आई हैव एन ऑर्डर लाइक माय स्कूल co-founders are also, I need to give it to him. Even here also I need to give it to some film actors, directors, producers. Even leaf art तो अभी बहुत जन को देना होता है। Even Delhi also, even I got connected with after the accident only I got connected with Helmet Man of India. दिल्ली में Helmet Man of India, आप शायद पता भी होगा, Helmet Man of India राघवेंद्र जी हैं। He is just not only my Facebook friend, he is just like my elder brother, क्योंकि उनका भी जर्नी कुछ ऐसे ही था। उन्होंने भी अपने फ्रेंड को लॉस्ट किया था इन अ रोड एक्सीडेंट, एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड सो मेनी लाइक हेलमेट्स। आज तक उन्होंने शायद लगभग काफी 70,000 1 लाख हेलमेट्स उन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, वो भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सब पर्सन के साथ मेरा कभी भी मीटअप्स होता है, तो आई यूज टू फील माई सेल्फ वेरी प्राउड कि मैं इन व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, या मैं भी खुद काम करता हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्सीडेंट सर्वाइवर, राइट। तो एक्सीडेंट सर्वाइवर्स को ना ये बहुत बड़ा एक मतलब हो जाता है कि भाई मेरा सबसे बड़ी योगदान होना चाहिए कि मैं अगर दूसरे को लाइफ सेव कर सकता हूँ। मैं कभी कभार हमारे बच्चे को मैं कॉलेज में देखता हूँ, आसपास घूमते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यार गाड़ी चलाना है तो हेलमेट पहन के चलो, क्योंकि भाई हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आई नो आज मेरा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रात में यही चीज बोला था, जो देखने के लिए आए थे, कि बेटा अगर तुम्हारा हेलमेट नहीं रहता ना, आज तुम यहाँ पे नहीं रहते, तुम कहीं और रहते। तो बात उनका बहुत सही था, क्योंकि हेलमेट था बोल के मेरा वो लाइफ सेव हो गया था। तो ऐसे कनेक्शंस बढ़ते रहे, और भी और कनेक्शंस चल रहे हैं। तो पता नहीं अभी किनके साथ मुलाकात होगा, नहीं होगा, अभी चल रहा है। तो अभी मैं हनी सिंह सर का मैंने बनाया, उनका ही बड़े अच्छे जर्नी है, बहुत साल के बाद वो वापस आए अपने गाने को लेके, मिलेनियर को लेके। तो ऐसे ही मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सोनू सर का, तो मैंने उनका ही बनाया। मैं कनेक्ट करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ टू मीट विद हनी सर। मैं देखता हूँ मैं कैसे कनेक्ट करूँ, तो बस अभी काम चल रहा है to get in connect with every people. My work is going on very fantastically, trying to meet with Mahendra Singh Dhoni also, like very soon if possible, like meet a chance if I'm going to like Kolkata, West Bengal, आसनसोल में। मेरा उधर से रांची झारखंड थोड़ा नजदीक हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा उनसे भी मिल के, क्योंकि उनका भी लीफ आर्ट मैंने बनाया था। तो बस अभी काम ऐसे ही चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा मिलता है तो मैं लगाता हूँ। अभी ऑर्डर्स है मेरे पास, अभी काफी सारे ऑर्डर्स है मेरे, 4-5 ऑर्डर्स है। कुछ फैशन शोज आ रहे हैं, वहां पे मतलब मेरा लीफ आर्ट आई नीड टू गिव इट टू सम एमिनेंट पर्सन्स। आई गॉट इन कॉन्टैक्ट इन कोलकाता, ओनली वन फैशन शो इज कमिंग, इट्स अ वेरी बिग फैशन शो। 30th मार्च को मेरा खुद का एक अवार्ड सेरेमनी है, नॉट माय ओन अवार्ड सेरेमनी, आई हैव बीन नॉमिनेटेड एज द बेस्ट बंगाली पर्सन। तो 31st मार्च, सो आई विल गोइंग ऑन 30th मार्च, 29th को मैं चला जाऊंगा। सो ओवर देयर आल्सो वन रिनाउंड फिल्म एक्ट्रेस इज कमिंग whom I know her from a very long time, तो उनको ही मुझे लीफ आर्ट देना है, तो ऑर्गेनाइजर्स को देना है। अभी चल रहा है पूरा, मतलब मेरा टारगेट ही होता है कि पत्ता उठाना। तो मुझे मेरे रूममेट बोलते हैं कि सर मतलब आप इधर उधर देखते हो, क्या देखते हो? मैं इधर उधर किसी इंसान को मैं नहीं देखता, मैं इधर देखता हूँ कि पत्ते मुझे कहाँ मिलेंगे। तो क्या सर आप क्या सोचते हो? उन्होंने, यार तो आप सोचते हो कि घर पे आकर रेस्ट लेना है, मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे पत्ते मिले। पत्ते में क्वालिटी होता है, हर पत्ते पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कपड़े में क्वालिटी होता है ना, वैसे पत्ते में क्वालिटी होता है। तो और मैं ना दूर से देख के पता चल जाता है कि पत्ते में मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना, क्योंकि आइडिया हो गया मेरा, इट्स एन एक्सपीरियंस। Yes. मेरा एक बहुत बड़ा बाल्टी होता है ना, टब, बकेट, Hmm. बकेट में मैं पानी डाल के मैं पत्ते को हर दिन, मतलब एक मॉर्निंग में मैं वॉश करता हूँ, ठीक है, आफ्टरनून में वॉश करता हूँ, एक नाइट में मैं वॉश करता हूँ, 3 बार। क्योंकि क्या होता है ना, जब पानी भर जाता है ना, तो उसमें लेयर निकलना शुरू हो जाता है। Okay. Okay. हाँ, और पत्ते में क्या होता है ना, जब एक पत्ता रहता है तो ठीक है, बहुत सारे पत्ते में क्या होता है ना, वो गंदगी होना शुरू हो जाता है, तो मुझे उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। Okay. तो पत्ते को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कम से कम अभी 15-20 पत्ता मैं अभी लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट कुछ बर्बाद होने का सिचुएशन पे आ गया है। मैं अभी सुबह चेक कर रहा था, मैं 2 को अभी 2 बर्बाद हो गया ऑलरेडी, और वो बड़े पत्ते थे, तो मैं उसको डस्टबिन में फेंक के आया।
अभी ये पॉडकास्ट खत्म होगा, फिर दोबारा जाकर मुझे पानी से साफ करना पड़ेगा, फिर मुझे बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इट्स अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, ये इतना यस, इजी नहीं है को टेक्निक्स उसमें चेकआउट बहुत करना। सारी। हाँ, और पत्ते क्या है, पीपल का पत्ते ना हमेशा बड़े ऊंचे भी रहते हैं, उतना हाथ राइट, जाएगा नहीं, उतना लंबा हम लोग के पास साधन भी नहीं है, राइट? इट्स नॉट राइट, वेरी इजी ऑल्सो लाइक टू गेट इन टच विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, टू गो अपराइज एंड यस ब्रिंग इट, सर। राइट? सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, मैंने बोला था ना कि हर चीज चैलेंजिंग है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपका चैलेंजिंग चैलेंज आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो यही चलते रहता है। अभी काम काम पे काम चल रहे हैं, अभी अभी दो ऑर्डर आए हैं, अभी वो दो ऑर्डर्स को निकालना है, करना है सब कुछ, बस चल ही रहा है काम अभी। ग्रेट सर, इसी एक में टेक्निकल में पूछना चाहूंगा सवाल, अ पर्सनल क्वेश्चन। लीफ जब आप पूरी आर्ट बना लेते हैं, सो उसको फिर प्रिजर्व करने के लिए भी यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ। ये देखिए, जैसे डायरीज होता है ना, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल कोई भी डायरीज हो, कोई भी किताब हो, बनाने का बाद आप उसको रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका प्रिजर्व हो जाएगा। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, आपको उसको प्रिजर्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह आपको रखने का जरूरत, क्योंकि क्या होता है ना, पत्ते में आप जब बना रहे हो ना, आप जब पत्ते को काट रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो लेयर है ना आस्ते से सूख जाता है, तो अगर आप नॉर्मल, जैसे कुछ पत्ते अभी सूख गए हैं, ठीक है, उस पत्ते को अगर मैं धूप में रख दूंगा ना, बर्बाद हो जाएगा। राइट, राइट, राइट। तो मुझे हमेशा डायरी के अंदर, बुक्स के अंदर, मुझे स्कूल में अगर बहुत पुराना मुझे किताब मिलता है, बहुत पुराना किताब जो दैट इज ऑफ नो यूज, फेंका हुआ है इधर उधर, मैं कलेक्ट करके लेके आता हूँ। ग्रेट। मैं क्या, बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, राइट? बड़ा सा किताब हुआ, ठीक है, बड़ा किताब के अंदर मैं रख दिया, 2 दिन के बाद मैं देखता हूँ कि कितना तक बैठा हुआ है। कल मैंने भगत सिंह का बनाया था, क्योंकि एक्चुअली 25 मार्च को मेरा एक इनविटेशन एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन दिल्ली, दिल्ली में शहीद भगत सिंह का अवार्ड है, वहां पे उनके जो ग्रैंड सन है, भगत सिंह जी के जो ग्रैंड सन है यदविंदर सिंह संधू जी, वो आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। आप ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला है कि सर आप आइए, क्योंकि आपका हर साल इनविटेशन रहता है, मैं हर साल जा नहीं पाता हूँ, कि वो मार्च में करते हैं और मार्च में मेरे मेरे बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं, तो मैं निकल नहीं पाता हूँ, छुट्टी नहीं मिलता है। तो अब डेट ही ऐसा है कि 25 तारीख, 26 तारीख को मेरा खुद का सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो मैं कैसे जाऊं? तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए इस साल भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने भगत सिंह जी के जो ग्रैंड सन है, मैंने उनको बोला है, तो वो आपके लीफ आर्ट से देख के बहुत खुश है, बहुत प्रभावित है, तो वो चाहते हैं कि भगत सिंह जी का अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो कल मैंने बनाया। अब मैं उसको रात में ही मैं प्रिजर्व कर दिया, अभी तक सुबह मैंने देखा नहीं कि वो किस कंडीशन पे है, लेकिन रात 12 बजे 1 बजे मैं उठ के एक बार देखा कि चलो वो कम से कम सूख गया, वो टाइट बन रहा है। तो ये सब चीजें मतलब मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाता है, इट्स वेरी लाइक वेरी टफ, इट्स वेरी वेरी टफ टू मेंटेन। जैसे मैंने देखिए ये बनाया था अरिजीत सिंह के लिए, ठीक है, सर मैंने बनाया है, जिसको मुझे भेजना भी है एज अ, क्योंकि मुझे ये पेपर में उसको पेस्ट करके मुझे भेजना पड़ता है। तो जैसे मेरे ही मोहल्ले में एक जन को मुझे देना है, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। तो उनका एक बुटीक है, इट्स अ बुटीक, तो बंगाली नाम से ही उनका बुटीक है, तो उनको मुझे देना है, ये उनको देना है। अब उसके बाद ये आता है के एल राहुल सर के लिए, ओहो, जो क्रिकेट प्लेयर है के एल राहुल, ग्रेट, 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 उनके लिए मुझे देना है। अब ये हमारे हनी पाजी है, अभी हनी पाजी का ये तो ओहो, पिक्चर बहुत अरे चल रहा वाह, है। ग्रेट, ग्रेट। ये तो एकदम रिसेंट फोटो उनका, जो विद बियर्ड हाँ, एंड द ग्रे हाँ, लुक उनका का, ये है ये ग्रेट, जो लुक ग्रेट। में जो फोटो था ना, ये यस, लुक में यस, का फोटो था, तो ये यस, हो गया। ग्रेट। ये भी मुझे उनको अभी पोस्ट करना है। और अभी कुणाल सर का भी मैंने बनाया था, ये भी मुझे कुणाल सर को भेजना है। हम्म। आहा। ये देखिए, गुड, 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 वेरी गुड सर। तो बहुत ही, बहुत बहुत ही, बारीकी से बहुत काम ही करना बारीक। पड़ता है, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। तो उन्होंने खुद भी, कुणाल सर ने मुझे खुद भी बताया था उनको, कि तौकीर भाई को, कि भाई ये तो बड़ा बारीकी से काम है, क्योंकि अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ अरिजीत सिंह सर का जो मैंने बनाया था, मुझे काफी टाइम लगा था उनको बनाने के लिए, क्योंकि उनका स्माइल से लेके सब कुछ, लुक्स, मतलब सब कुछ चेक करना, इट्स नॉट सो इजी टास्क। माय गॉड, अच्छा आपने, ओहो, उनके बाल से लेकर ये बहुत, बहुत ही बड़े, वो तो, ये माय देखिए, गॉड, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओहो, तो बाल और फिर जो डिटेल्स तो आपने ऐसे जो ऐसे कैप्चर लगेंगे। करी है। हम्म, सर, वही डिटेल्स जो बहुत आपने बारीकी कैप्चर। तरीके से करना पड़ता है, बहुत बारीकी तरीके से करना पड़ता है आपको। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो ये आपको पता चल जाएगा, दाढ़ी से लेके टीथ से लेके सब कुछ करना पड़ता है, और उनके तो कर्ली हेयर्स है, नॉर्मल हेयर्स तो है नहीं उनके, राइट, 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 इसीलिए मैं, उनके आई वाज कर्ली जस्ट हेयर्स लुकिंग है। इनटू दैट, कि एकदम वो पूरा इतना डिटेलिंग करना, बहुत बहुत इट बहुत इज बहुत रियली। मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नेशनल सेंसेशन ऑफ इंडिया है, जैसे चिराग पासवान जी, क्योंकि मैं उनको क्यों मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे फादर सेल में थे, और उनके फादर उस टाइम मिनिस्टर थे, स्टील मिनिस्टर थे, रामविलास पासवान जी। ओ माय गॉड, बहुत डिटेलिंग है इसमें। ओहो, ग्रेट, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। अब इनको बहुत बैठाएंगे तो आपको एकदम पूरा लगेगा कि भाई ये तो चिराग पासवान ही है।
राइट 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 राइट, नहीं ये तो बहुत डिटेलिंग के साथ सर आप बनाते हैं एकदम। हाँ, ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये चलता है। रिसेंटली सरस्वती पूजा हुआ था, बसंत पंचमी। तो हम्म। एक तो ऑर्गेनाइजर्स ने सोशल मीडिया में मुझे बोला कि सर मुझे बनाना है, तो मैंने बोला ठीक है मैं देता हूँ। ये मैंने बनाया था महाकुंभ के लिए। वाह, ओहो। महाकुंभ वाला है तो भाई इतना दिन का है, इतना सालों के बाद महाकुंभ हम लोग का, देशवासी के लिए, हम लोग हिंदुत्व के लिए तो हमेशा, तो मैं इतना जन के लिए बना सकता हूँ तो मैं महाकुंभ के लिए क्यों नहीं। तो मैंने अपने रूममेट को बोला यार ये तो, क्योंकि आप भी यूपी से हो, मैं बोला मैं बंगाल से हूँ, मैं घूम के भी आया हूँ, ये देखिए वाह, असम असम, महाकुंभ। बहुत ही बढ़िया, महाकुंभ 2025। ये एंड एक साधु का फोटो है। ऋषि मुनि और आपने बनाया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, विद डिटेलिंग, आप एग्जैक्ट डिटेलिंग के साथ आप हाँ, बनाते हैं। ग्रेट। और ये देखिए मैंने शिवरात्रि के लिए बनाया, शिव जी के लिए। शिव शंभु, ओहो, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही क्योंकि बढ़िया। मैं शिव जी को मैं बहुत मानता हूँ, हर हर महादेव हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सेम तो ईयर सर, चलते रहता है। बहुत ही बढ़िया। सरस्वती का भी था, बसंत पंचमी हम लोग तो बहुत मनाते हैं, इधर नहीं हो पाता है। तो मैं अपने स्कूल लाइफ को मैं बहुत मिस करता हूँ, तो मेरी वाइफ को मैंने बोला कि तुम जाओ, तुम दिखाओ एक बार। वाह, बहुत ही बढ़िया सरस्वती माता, हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया सर। स्वान और पूरा तो जो चलते बता रहता डिटेलिंग है। बनाए, बहुत ही बढ़िया है सर, इट इज और रियली चलते रहता है सर काम। डेडिकेशन, इट इज कमिटमेंट। और जिस वेरी 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 प्रिसाइज, टफ, इट इज वेरी टफ टू मेंटेन एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना अपने काम पे, तो फुल मतलब कौन केस हो जाएगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी कभी कभार होता है कि आप आंख बना रहे हैं या नाक का ये जो पोर्शन आता है ना, ये पोर्शन को क्लियर करने से पहले क्या होता है, पत्ते बहुत बारीकी वाला चीज होता है सर, इसको आप रीपेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपका स्टेंसिल नहीं है कि इरेजर से आप दोबारा बना के आप दोबारा क्लियर कर लेंगे। राइट राइट राइट। काटने का वजह से अगर ये थोड़ा फट गया ना, तो पूरा आपको काटना पड़ेगा, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने दर्शन रावल सर का मैंने बनाया था, हार्डी संधू का बनाया था, एकदम एग्जैक्ट उन्होंने भी बताया था यार ये तो मतलब बड़ा अजीब चीज है। मैंने केजीएफ को मैंने भेजा था, यश जी को, तो उनका भी वैसे ही था पूरा फुल। तो मतलब बहुत बहुत टफ होता है। सोनू सर का तो एग्जैक्ट, सोनू सर तो मुझे खुद ही बोले थे कि यार मुझे देखे जाओ, मुंबई में आओ मिलो। होता ही नहीं है कभी, मतलब भी चांसेस हो रहा है कि जब कुणाल सर से मिलने के लिए जाएंगे तो सोनू सर से भी मिल लेंगे नहीं, इसी अच्छा है बहाने। सर, आप अच्छा है, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। सर यूजुअली इसको करने में सर कितना, मतलब एक एवरेज जर मैं बोलूं तो एक आर्ट एवरेज, बनाने में। एवरेज टाइम आप बता रहे हैं ना, एवरेज टाइम नॉर्मल कितना टाइम लगता है। देखिए नॉर्मली एवरेज टाइम जो होता है वो मैक्स टू मैक्स आपका 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। 6-7 घंटा, वो भी कांस्टेंट बैठे हुए। तो अब मैं रहता हूँ थोड़ा दूरी रहता हूँ, मतलब मैं यूज टू स्टे इन अ पीजी इन अ हॉस्टल, राइट। तो हॉस्टल में क्या होता है कि टाइम पे खाना होता है, ये तो घर नहीं है भाई, रात 12 बजे आपके लिए आपके पेरेंट्स इंतजार करेंगे। तो मैं जो भी काम करता हूँ इधर, मैं स्कूल से आने का बाद ही मैं शुरू कर देता हूँ, फटाफट काम करना पड़ता हूँ। जहां मेरे कोई फोन कॉल्स कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ गाना सुनूंगा, कान में मेरे ब्लूटूथ रहेंगे, मैं गाना सुनूंगा, मैं बनाऊंगा, बस दैट्स इट। ग्रेट दरवाजा मेरा खुला रहेगा, ये नहीं कि कोई नॉक कर रहा है भैया आऊं या सर आऊं, नहीं, आना है बात करके चले जाओ भाई। मेरा काम पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर बनाता हूं तो मैं डिनर के बाद ही बनाता हूँ। जैसे मैं उस दिन बना रहा था एक जन के लिए, तो उन्होंने मैंने भेजा भी उनको चेन्नई में, तो उनका मुझे मैंने बनाना शुरू किया 9 बजे से, ठीक है, 8:30-9 के बीच में मैंने बनाना शुरू किया। मैंने पेरेंट्स से बात किया, वाइफ से बात करके सारे फोन कॉल्स खत्म करके, राइट, मैं बनाना शुरू किया। वही कम से कम शायद 3:30 बजे तक मैंने बनाया। हाँ, 3-3:30 बजे तक मैंने बनाया। और सुबह 5-6 बजे उठ के मैं रेडी हो गया स्कूल के लिए। मतलब वो 2 घंटा नींद इज एनफ फॉर मी। 2 घंटा मैं सोया। ये सही तपस्या ही है ये। एंड कमिंग बैक टू द एजुकेशन, व्हाट इम्पैक्ट डू यू होप टू हैव ऑन द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? Education in India has to be very perfect because if you see the subjects, different subjects are there। हम लोग तो नॉर्मली खाली, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता है आपको ही पता है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो भाई आप साइंस लेके पढ़ रहे हो तो आपको प्योर साइंस बायो साइंस लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, राइट। हम्म। अभी तो मैं तो इसके लिए एचआरडी मिनिस्ट्री को बहुत मैं थैंकफुल भेजता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बच्चे फिजिक्स ले रहे हैं या केमिस्ट्री ले रहे हैं, तो दे हैव टेकन पेंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट, कभी पेंटिंग ले लेते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर में प्रीवियस स्कूल में मैंने देखा कि बच्चा फिजिक्स साइंस का स्टूडेंट है, वो मेरे क्लास में बैठा हुआ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। तो मैंने उससे पूछा तुम तो साइंस का स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स है, नहीं तो ह्यूमैनिटीज। इकोनॉमिक्स दो में जाएगा, राइट इधर एम राइट। कॉम नहीं तो एमए, बीए नहीं तो एमए में जाएगा, तो तुम इधर नहीं सर। बाई चांस अगर मेरा साइंस कट गया तो आई कैन शिफ्ट इनटू इकोनॉमिक्स। तो मैंने बोला कि चलो ये इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। तो ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स अभी आए हैं, स्पेशली 99 सब्जेक्ट्स, 99 सब्जेक्ट आए हैं अभी सीबीएसई में, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रिमेनिंग अबाउट ऑल दैट
लैंग्वेज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए सब्जेक्ट हैं जो हम लोग को पता भी नहीं होता था। क्योंकि हम लोग जब कॉमर्स लेके पढ़े थे तो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, बस ये 6 सब्जेक्ट था। मैक्सिमम स्कूल्स में यही चल रहे हैं। कभी कभार स्कूल्स में मास मार्केटिंग मीडिया चलता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि इफ आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड लाइक व्हाट इज टू बी कॉल्ड जर्नलिस्ट या मास कम्युनिकेशन, I can easily do it. Even people can understand with by taking interviews, they can also become a podcaster. अभी मैक्सिमम पॉडकास्ट आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे अभी पॉडकास्ट के स्टूडियोज हो गए हैं, प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, पहले तो इतना सब था ही नहीं। तो आपको ये आइडियाज भी हो जाएगा अगर मास मीडिया मार्केटिंग लेके पढ़ रहे हैं तो। आप पेंटिंग, जैसे मेरे स्कूल में एक बच्चे ने लिया था पेंटिंग, मुझे अभी भी याद है, वो मेरी बहुत अच्छी फेवरेट स्टूडेंट है। तो अभी वो खुद भी बहुत अच्छी मॉडल भी है, शी इज अ वेरी गुड मॉडल एज वेल एज शी इज ऑल्सो टेकन इनटू अ पेंटिंग। तो उसने ऑन्ट्रप्रनरशिप लिया था, उसने पेंटिंग लिया था। तो मैंने बोला ऑन्ट्रप्रनरशिप इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तुम पेंटिंग। तो सर आई एम वेरी गुड इन पेंटिंग। बोला ठीक है, you are very good in painting, I can understand, you have that passion, you have that gist, that yes, but sir this will increase my marks also. I said how many marks? No sir, 70 marks is the practical, 30 marks is the theory. मैंने बोला बस तब तो हो गया, 70 marks तो you will get it from school and by drawing also. अगर आप 70 में 60 भी ला रहे हो और अगर आप थ्योरी में 30 में से 20 ला रहे हो, आपका हो गया 80 मार्क्स। Right. तो आपके जब परसेंटेज वेरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर कमिंग इनटू 80%, 90%। Right. तो अभी बहुत प्लस पॉइंट हो गया है, इट हैज बिकम अ वेरी गुड प्लस पॉइंट कि जितने सब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कीजिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग, मैक्सिमम बच्चे फूड प्रोसेसिंग पे नहीं जाते, फूड प्रोसेसिंग क्या है नहीं पता चलेगा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर में आजकल बच्चे हैं ही नहीं। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में देखिए, कोई जाता ही नहीं है, खाली हम लोग किसान को देखते हैं, वो फार्मर है, ये फार्मर है, बस टोल फ्री नंबर दे दिया जाता है। बट फार्मिंग को आपको सीखना है, सॉइल फार्मिंग क्या है, फर्टिलिटी क्या है, आर्कियोलॉजी कोई पढ़ता ही नहीं है। सबका दिमाग में वही चल रहा है कि हम लोग को मदर इंस्टीट्यूट को लेना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बस इंस्ट्रूमेंटेशन पे कोई जाएगा नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग अभी हल्का हल्का अभी थोड़ा डेवलप हो रहा है मार्केट में, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कोई जानता ही नहीं है। मेटलर्जी कितना इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, मेटलर्जी। अगर आप मेटल्स को लेकर काम कर रहे हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपको मेटलर्जी जानना बहुत जरूरी है। ये मेटल है कि नहीं, वो मेटल है कि नहीं, वो इसमें नहीं है। सबका अभी चल रहा है कि भाई मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटीज। तो अभी सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा कि सब्जेक्ट को चूज करना, उसको लेके आगे जाना। और एजुकेशन सेक्टर में मैक्सिमम मैं ये बोलूंगा कि एजुकेशन हैज टू बी वेरी परफेक्ट, ठीक है। मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो नाउअडेज स्टूडेंट्स आर आल्सो गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। तो एचआरटी मिनिस्ट्री में मैक्सिमम आप देखेंगे कि मैक्सिमम हमारे बच्चे आज बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, दे आर गोइंग आउटसाइड बिकॉज द मार्क्स दैट दे आर गेटिंग, दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज इट मोर, ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। पोस्ट डॉक, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि टू कंप्लीट माय पीएचडी एंड गो फॉर पोस्ट डॉक फॉर हायर स्टडीज। मेरा भी अभी वही सीन चल रहा है। अभी आई आल्सो यूज्ड टू गो फॉर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आपके नॉलेज में सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, तो आप आराम से उसको कर रहे हैं, तो चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही सीन है। ग्रेट सर। सर एक लाइट क्वेश्चन सर लेना चाहूंगा, एंड यस इम्पोर्टेंट टू, हाउ डू यू सेलिब्रेट एंड एक्नॉलेज स्टूडेंट अचीवमेंट्स? स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, हर बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं किसी बच्चे में मैं ब्लेम नहीं दूंगा। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करेगा। जैसे कल की बात है, कल मेरा सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो रहा था क्लास 12 में। हम लोग ने अपना ड्यूटी कर दिया है सर। अब बच्चे पेपर में क्या लिख के आ रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। वी डिड आवर बेस्ट एज अ टीचर, वी डिड आवर बेस्ट, राइट। अब वो बच्चे क्या सेव कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बच्चे के ऊपर शेप हो जाता है। अब नॉर्मल जो बच्चे हैं ना, जो पढ़ना चाहते हैं, जिसको लाइफ में कुछ करना है कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनके प्रोस्पेक्टिव्स बड़े अच्छे होते हैं, गाइडेंस बड़े अच्छे से लेते हैं। आज भी मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट कर चुके हैं, काफी साल पहले 2022 में पास आउट हुआ था। मेरी वाइफ बैंगलोर में आई हुई थी लास्ट कुछ महीने पहले, तो हम लोग घूम रहे थे बैंगलोर में। क्योंकि बैंगलोर क्या होता है ना कि हम लोग के पास टाइम नहीं मिलता है घूमने के लिए बैंगलोर में, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि सिटी जाने के पास टाइम नहीं है, और इतना बड़ा है कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, समझने के लिए। तो हम लोग घूम रहे थे, रात में सडनली एक कॉल आया, अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने एक बार काटा, दूसरा बार कॉल किया, मैंने पिकअप किया। मैंने बोला कि नहीं, जब कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई अननोन नंबर से। तो बोले कि सर मैं ये आपका स्टूडेंट। बोला हाँ बताओ कैसे हो। तो बोला सर मैं तो ठीक हूँ, आप पहले मुझे बताइए कि मैं सीए करूं या सीएस करूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई करूं या कंपनी सेक्रेटरी का काम पढ़ाई करूं। मैंने देखो बोला दो चीज है, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, दोनों प्रोफेशनल कोर्सेस है। तुमको शेप करना है तुम्हारे फ्यूचर, सर वही मुझे करना है। अलम तुम अगर सीए करोगे तो तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, तुम चाहे तो खुद भी सीए फार्म खोल सकते हो। उसको मैंने समझाया। बोला सर व्हाट इज द प्लस पॉइंट एंड नेगेटिविटी फॉर सीएस। मैंने बोला कि देखो सीएस, मैंने भी सीएस का पढ़ाई किया फ्रॉम आईसीएसआई,
मैंने भी इंटर क्वालिफाई किया सीएस में, मुझे पता है सीएस में क्या है। अगर तुम सीएस बन रहे हो, एक कंपनी में कितने सेक्रेटरी को रखेगा? बोले तुम मुझे बताओ, एक कंपनी में एक ही सेक्रेटरी को रखेगा, 50 सेक्रेटरी नहीं रख सकता है। लेकिन एक कंपनी में 4 अकाउंटेंट रख सकते हैं, 2 अकाउंटेंट रख सकते हैं। तो तुमको देखना है कि भाई मुझे इसमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बोला सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और क्या कर सकते हैं? अगर तुम चाहे तो खुद अपना फार्म खोल सकते हो, सीए फार्म। अगर तुमको दिक्कत होगा, बोला सर मुझे आसनसोल में ही खोलना है, चलो अगर आसनसोल में खोलना है, मैं पर्सनली किसी सीए से बात कर लूंगा, वो मेरे बात मान लेंगे। इतना रिस्पेक्ट मेरा है आसनसोल में, कलकत्ता में, कि मैं अगर किसी को भी मैं उठा के बोलूं कि सर इस बच्चे को रखना है आपके पास, तो वो रख लेंगे। इतने कनेक्टिविटी है मैं जिनके साथ मैं पढ़ा हुआ हूँ, जो मुझे जानते हैं या जिनके साथ मेरा थोड़ा सा बनता है। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, तो मैं सीए करता हूँ। देखो सीए थोड़ा टफ है बेटा, सीए में बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, तुमको फोकस करना पड़ेगा कि मुझे, क्योंकि सीए और आईएएस आईपीएस क्रैक करना बात बराबर है, दोनों इक्विवेलेंट है। ये भी प्रोफेशनल है, ये भी तुम आगे पीछे लिख सकते हो सीए, उसमें भी तुम्हारा नाम के कॉमा देके तुम आईएएस आईपीएस लिख सकते हो। तो यूपीएससी का लेवल में तुमको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके तुम क्वालिफाई कर पाओगे। शादी क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ झमेला हो रहा है, ये सब दिमाग से निकालना पड़ेगा तुमको। तुमको फोकस करना पड़ेगा कि मुझे पास करना है, बिकॉज योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो बोला नहीं सर, उसके बाद शादी का भी थिंकिंग आना। देखो शादी का थिंकिंग तो बाद में आता है, पहले तुम जब अपना करियर बनाओगे ना, जब तुम खुद कमाओगे, तो किसी भी जगह अगर तुम ससुराल में भी जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो बोला सर थैंक यू वेरी मच, मुझे आपसे मिलना है। तो हमने ठीक है, मैं जब जाऊंगा वैकेशन पे मैं तभी मिलूंगा। मैं गया था, मिर्जा मिल के मैं आया, पैर वैर छुए, बोला कि सर आपसे फोटो लेना है। यार कितना फोटो लेगा, तब से तो फोटो लिया था। बोला नहीं सर, आप एक अलग रेस्पेक्ट की जगह पे हम लोग की। ना ठीक है चलो, चलते रहते हैं। तो ये होता है कि ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को करना क्या है। हम बच्चे लोग को तो बोलते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब वो बच्चे देखिए जबरदस्ती से कुछ नहीं हो पाता है। मैं कभी कभार कुछ रिलेशनशिप्स में मैं देखता हूँ कि रोना धोना शुरू हो जाता है, तो मैं उन लोग को यही बात बोलता हूँ, कभी मेरे पास अगर सलाह के लिए आते हैं कि सर आप तो मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप बताइए कि मुझे अब करना क्या है, इसने मुझे डिच किया, उसने मुझे डिच किया। तो मैंने उसको एक ही बात बोलता हूँ कि यार देखो, जिसको रहना है वो 1000 मुश्किल में तुम्हारी जिंदगी में रहेगा, और जिसको रहना नहीं है उसके लिए आप 1000 तुम तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएगा। उसको जिसको रहना है वो रहेंगे, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेंगे। बच्चे का भी वही कंसेप्ट है। आप बच्चे को 1000 बार बोलो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, अगर बच्चे को पता चला कि मेरे फादर मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको, तो बच्चा पढ़ लिख के कुछ लायक बनेगा। और बच्चे अगर पहले से ही देख लिए हैं कि मेरे फादर के पास तो भाई बहुत पैसा है, मैं किसी ना किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही जाएगा, इतना पावर इतने इन्फ्लुएंस है, बच्चा सक्सीड नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है सर, ये इससे हम लोग बहुत कॉमन सिनेरियो मानते हैं। बस चीजें यही है, आपको चीजें को खाली देखना है अपने नजर से बस। Moving to the last question and most important one, what legacy do you hope to leave in the field of education art and the leaf art? और सर आप और भी और लोगों को सिखा रहे हैं या ऐसा कुछ है कि इसको थोड़ा सा और इजी कर सके इन कंटेक्स्ट ऑफ द पीपल हु द स्टूडेंट हु आर लर्निंग दिस न्यू आर्ट? सी अभी नाउअडेज क्या होता है कि मेनी पीपल आर डूइंग दिस, नॉट ओनली मी, देयर आर मेनी ऑफ देम। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सबके, एवरीबॉडी हैज अ क्रिएटिव माइंड, राइट। मेरे पास क्रिएटिविटी है, मैं लीफ आर्ट कर रहा हूँ, पोएट्री कर रहा हूँ, मोटिवेशन पे जा रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो सबके पास ये चीज है। तो सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत जन अभी काम कर रहे हैं इसके लेके, तो सब अपने अपने फील्ड में मगन है, अच्छे अच्छे से काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वेल बेस्ट, आई कैन से। तो यहाँ पे लीगेसी का क्या होता है कि कुछ बच्चे मुझे सीख पूछते हैं कि सर मुझे सिखाइए ऐसा ऐसा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो ऐसा से सीखना है, क्योंकि ये मेरे लिए बेसिकली ये एक इंस्पायरिंग जर्नी है मेरे लिए, ठीक है। और नॉर्मली इस चीज में क्या होता है कि ये मेरा एक पैशन है, क्योंकि वो क्या होता है ना कि आइडल मैन इज द डेविल्स वर्कशॉप। आप खाली बैठेंगे ना, जहां आपने खाली बैठा, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू लाइक डू द टास्क इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज को करना। तो इस चीज को मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे काम कर रहे हैं, दैट इज लाइक टू इम्पोर्टेंट। तो चीजें होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चीजें नहीं होते हैं। तो इट गोज ऑन बियॉन्ड, और काम तो चलता ही है। बच्चे को मैं कभी कभार सिखाता भी हूँ। अब बच्चे को क्या है ना कि बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं आता है अभी, क्योंकि अभी क्या है कि बच्चा बचपन से ही उसको सिखा दिया जाता है कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। नहीं तो हमारे यहाँ तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि आपको प्लेयर बनना है, राइट। अब बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम से कि ऊपर से क्या होता है कि कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि देखिए एक्चुअली टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, राइट। और टीचर्स का जो फेस करना पड़ता है ना, वो बहुत स्ट्रगल का फेस है। क्योंकि डॉक्टर पे क्या है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं दे पाए तो वो आपको 2 4 बात सुनाएंगे नहीं। यहाँ क्या है
आप बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप वही बच्चे जब नंबर कम लेके आते हैं तो यू बिकम द सोल रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपको हर चीज मेंटेन करना बड़ा बड़ा टफ हो जाता है, बहुत 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 ज्यादा टफ हो जाता है। तो मैं बच्चे को सिखाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जो भी सीखना चाहते हैं तो मैं इसको सिखाता हूँ कैसे करना है, नहीं करना है, ड्राइंग करना है, बट स्टिल लाइक टाइम फ्लाइज गोज ऑन। और ये तो बेसिकली मैं अपने आप को बस बिजी रखना चाहता हूँ, बस बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे, ठीक है, आप गलत दिशा पे नहीं जाएंगे। डायरेक्शन होना आपका बहुत जरूरी है, बहुत सही है, क्योंकि होता है ना मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर गुरु से आपको मार्गदर्शन मिले ना, बहुत अच्छी बात है। स्कूल खत्म हुआ, आके इधर फैमिली है, सबसे बात हो रहा है, मजे में है, मैं जा रहा हूँ, मीटअप कर रहा हूँ, एक दो महीने में मैं कलकत्ता जाता हूँ, मैं घर पे आ जाता हूँ, मीट करता हूँ, मेरे पेरेंट्स है वाइजैक में है, उधर भी मैं मीट करता हूँ, जाता हूँ, इज गोइंग ऑन फाइन, मेरा काम भी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप प्रॉपर बैलेंस कर पा रहे हो ना, इट विल वर्क नाइसली। बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं जितने भी योगी राम के पॉडकास्ट देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, एंड जो सर को सुनते आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सर के साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा पर्सनली भी। एंड यस, रूपम जी की अगर मैं बात करूं, ही इज ए मल्टीपल अवार्डी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। लीफ आर्टिस्ट से आप सब लोग इनको जानते हैं। एंड यस सर, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप ऐसे ही जो आने वाली जनरेशन है, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको ऐसे ही आगे मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहे फ्रॉम योर जर्नी, फ्रॉम योर जो आपकी जो जो तपस्या है, एंड योर मोटिवेशनल पोएम्स ऑल्सो। सर, इट वॉज रियली ग्रेट ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात मुझे करके, भी सर। एंड रियली इट वॉज रियली थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। No, 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 no. The time is very precious. Time is precious for you also. Time is precious for everyone. Time सबके लिए important है। मेरे लिए टाइम ऐसा नहीं है कि नहीं भाई चलो मैं बहुत एक बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे लिए टाइम का बहुत ऐसा नहीं है। मैं आई वॉज ऑलवेज यूज टू बी वेरी सिंपल। कभी कभार मेरे जो भी मतलब लाइंस देखते हैं जिससे ही मेरा बातचीत होता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो सब मुझे ये कहते हैं कि सर, कि भैया ये तो सर आप बड़े सिंपल है, कभी आपको ये थिंकिंग नहीं आया कि आप इतने सेलेब्स के साथ घूमते हैं या रहते हैं हमेशा। खुद को भी कभी अपने ऐसा नहीं लगा। नहीं, मैं सबको यही कहता हूँ कि इफ आई कम इन आसनसोल ऑल्सो, मैं अगर अपने घर पे आता हूँ, किसी को ये पता भी नहीं लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे रतन टाटा जी से मैंने देखा है, जब मैंने रतन टाटा का लीफ आर्ट बनाया था, मैं उनको जब भेजा था, तो मैंने उनसे एक ही चीज सीखा था कि यू हैव टू बी वेरी सिंपल। क्योंकि अभी मुझे याद है वो जब एक मैंने पॉडकास्ट सुन रहा था, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट और नॉट, तो वो जब हिथ्रो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गए थे, नाइटहुड अवार्ड के लिए, वो हिथ्रो में सबसे पहले खड़े होकर पूछे कि यार, मेरे दिमाग में आया कि हाउ इज माई डॉग्स, तो वो आए नहीं, वो अचीवमेंट लेने के लिए आए नहीं। तो प्रिंस चार्ल्स ने उनको यही चीज बोला था, कि शायद प्रिंस चार्ल्स ही होंगे शायद दैट टाइम, तो उन्होंने बोला कि रतन इज अ वेरी गुड पर्सन, इज अ मैन, क्योंकि वो अपने डॉग्स को छोड़ के नहीं आए। वो बोला कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर मैं एक दिन चला गया तो मेरे डॉग्स भूखे रह जाए। तो दैट सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका गाड़ी खराब हो जाता है ना, तो वो खुद ही अपना मैकेनिक को भेजते हैं कहीं, क्योंकि मैकेनिक जब तक चाहेंगे तब तक वो ठीक कर देंगे। तो दिस इज रतन टाटा, दिस इज द मैन। तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है ना, उनका कहता है कि भाई 15 मिनट अगर आप किसी को बुला मैकेनिक को बुलाने के लिए जाओगे, मैं 7.5 मिनट में उसको ठीक करके मैं पहुंच जाऊंगा मीटिंग पे। तो ये सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी सिंपल। अगर आप सिंपल नहीं रहेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाए। आप अरिजीत सिंह को देख लीजिए, अरिजीता को देख लीजिए, इज वेरी सिंपल, डाउन वेरी सिंपल, डाउन टू बहुत डाउन टू अर्थ है वो। आज देखिए वो किस लेवल पे है। अर्थ। दैट इज द रीजन। तो ग्रेट यही सर, चीज ग्रेट होना सर, बहुत जरूरी है। ग्रेट सर।